અસીમ જય જયકાર હો અસીમ જય જયકાર હો ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા 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 ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સત્સંગમાં આપણે બધાનું સ્વાગત છે. આપણે પહેલાં એક ભજન ગાઈશું અને એ ભજન ભગવાન અને ભગવાનની ભૂમિકા આખી ખુલ્લી કરે છે. કવિરાજ શ્રી મોદીભાઈએ દાદા ભગવાનના કવિરાજ ગાયેલું છે, લખેલું છે અને ગાયેલું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. બધાને ગ્રુપમાં મોકલેલું છે એટલે જે બધા ગ્રુપમાં છે એમને જોવાનું છે. અવતારોના જન્મ પૂર્વે પરાશર હતા જે અવતારોના જન્મ પૂર્વે પરાશર હતા રે અલ્લાહના જન્મ પૂર્વે મુસ્લિમ હતા જે અલ્લાહના જન્મ પૂર્વે મુસ્લિમ હતા જે ખુદાના જન્મ પૂર્વે ઓજા હતા જે ખુદાના જન્મ પૂર્વે ઓજા હતા જે ક્રાઇસ્ટના જન્મ પૂર્વે ક્રિશ્ચન હતા જે ક્રાઇસ્ટના જન્મ પૂર્વે ક્રિશ્ચન હતા જે જરખોશના જન્મ પૂર્વે ભારતી હતા જે જરખોશના જન્મ પૂર્વે જૈન હતા જે કૃષ્ણના જન્મ પૂર્વે વૈષ્ણવ હતા જે કૃષ્ણના જન્મ પૂર્વે વૈષ્ણવ હતા જે રામના જન્મ પૂર્વે હિન્દુ હતા જે રામના જન્મ પૂર્વે હિન્દુ હતા જે મહાદેવના જન્મ પૂર્વે શૈવ હતા જે મહાદેવના જન્મ પૂર્વે શૈવ હતા રે નેતિ જન્મ પૂર્વે સનાતન હતા જે નેતિ જન્મ પૂર્વે સનાતન હતા રે પૂર્ણના જન્મ પૂર્વે સંપૂર્ણ હતા જે પૂર્ણના જન્મ પૂર્વે સંપૂર્ણ હતા જે નાત જાત જન્મ પૂર્વે ધર્મ હતા જે નાત જાત જન્મ પૂર્વે ધર્મ હતા જે ધર્મના જન્મ પૂર્વે મર્મ હતા જે ધર્મના જન્મ પૂર્વે ધર્મ હતા રે ધર્મના જન્મ પૂર્વે આદ્ય હતા જે ધર્મના જન્મ પૂર્વે આદ્ય હતા જે શબ્દના જન્મ પૂર્વે શ્રુત હતા જે શબ્દના જન્મ પૂર્વે શ્રુત હતા રે સર્વપ્રથમ પ્રણવ મંત્રી ઓમ હતા જે સર્વપ્રથમ પ્રણવ મંત્રી ઓમ હતા જે વાણીના
વિરામ પછી સંજ્ઞા તારે વાણીના વિરામ પછી સંજ્ઞા તારે શાશ્વત નિષ્પક્ષ બિંદુ ઓમ અસારે શાશ્વત નિષ્પક્ષ બિંદુ ઓમ હતારે શાશ્વત અપક્ષ મૂળ પુરુષ તારે શાશ્વત અપક્ષ મૂળ પુરુષ હતારે શાશ્વત અપક્ષ મૂળ પુરુષ તારે શાશ્વત અપક્ષ મૂળ પુરુષ હતારે આ છે એ પ્રગટ મૂર્ત પરમાત્મા આ છે એ પ્રગટ મૂર્ત પરમાત્મા આ છે એ પ્રગટ મૂર્ત પરમાત્મા આ છે તે પ્રગટ મૂર્ત પરમાત્મા આ છે એ પ્રગટ મૂર્ત પરમાત્મા આ છે તે પ્રગટ મૂર્ત પરમાત્મા જય સચ્ચિદાનંદ. આમાં પરમાત્માનું સ્વરૂપ, ભગવાનનું સ્વરૂપ બહુ સારી રીતે કીધું કર્યું છે. આપણે ભગવાન અને ભગવાનની સમજણ અને આ દાદા ભગવાનની માર્ગ વિશે આપતો પુત્ર સુધીનાનંદજી આપને આગળ સમજાવશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તક્ષ કોમ્પ્લેક્સના જે બી નવા ભાઈ બહેનો હોય, મુમુક્ષો હોય, એમને આ સત્સંગ માટે જય સચ્ચિદાનંદ. ખાલી મારી જાણ માટે આપ શ્રી જનસે ભાગ ઉપર કરશો કે આપ અહીંયા છો, નવા છો, એ તો મહાત્મા નથી તે વિશાલીબેન. હા હા, બસ વેરી ગુડ, સરસ. આ એટલા માટે કે તમે પહેલી વાર કદાચ સાંભળતા હશો. એમાં રાઈટ? દાદા ભગવાન વિશે રાઈટ? દીપો આ સાહેબ મને સાઈન મળે. એટલે એક કોર્ડલેસ જો ત્યાં જવા દો ને એમને. કારણ કે અચ્છા, ઓકે, સરસ. તમે બી જ્ઞાન લીધેલું હશે? લીધેલું છે? हाँ साहब, तो तुम्हारे साथ अच्छी बात करनी है. हिंदी में बोले? हाँ ठीक है. हाँ अधिक से अगर हिंदी है तो हिंदी में बात करेंगे. बहुत अच्छे. अगर ऐसा कुछ हो, कुछ शायद सुनाई ना दे, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप थोड़ा आगे आ सकते हैं. हमारा सत्संग उल्टा है, हम नए लोगों को आगे आमंत्रित करते हैं और पुराने बाकी लोगों को जो वाकिफ है इन बातों से, तो वो तो पीछे से सुनते ही हैं. क्योंकि आप पहली बार आ रहे हो, दादा भगवान क्या है, वैशाली बहन ने सत्संग रखा है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके लिए आपके साथ बात कर रहे हैं. किसी को कुछ प्रश्न होना तो होना. हमारे यहाँ सामान्य तौर पे प्रश्न उत्तरी के रूप में सत्संग होता है. क्योंकि ये प्रथम मुलाकात है, इसीलिए मैं थोड़ा पूर्व भूमिका दे रहा हूँ. और उसके बाद आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप जरूर से पूछ सकते हैं. एक ही उद्देश्य है कि आप यहाँ पे आए हो, सत्संग के बाद कुछ यहाँ से लेके जाइए. कुछ एक या दो बात भी आपके कुछ जीवन में परिवर्तन लाने वाली हो, कुछ काम लगे, ऐसा हमारा उद्देश्य है. कोई हाई फाई फिलोसॉफी की बातें नहीं करनी है. हमारे जीवन में सुख शांति कैसे बढ़े, हम परमात्मा की ओर कैसे बढ़े, हमारा जीवन कैसे अच्छा हो, इसी की बात करनी है. तो ये जो हमने भजन सुना, जिसमें इस कलयुग के सारे भगवान का उल्लेख किया था, कृष्ण भगवान, राम भगवान, महावीर भगवान, अल्लाह, क्राइस्ट. और कहने का मतलब इतना ही था कि ये जो सारे भगवान थे, तो क्यों भगवान कहलाते थे? उनमें ऐसा क्या था कि वो भगवान कहने लोग उनको भगवान की ओर पहचान लगे? भगवान यानी जिस शरीर में आत्मा प्रकट हो जाता है, जिस शरीर में आत्मा प्रकट होता है, तो उस शरीर को भगवान कहते हैं.
राम के अंदर आत्मा प्रकट हो गया था तो राम भगवान बन गए, कृष्ण के अंदर आत्मा प्रकट हो गया तो कृष्ण भगवान हो गए। उसी तरह महावीर भगवान, उनमें भगवत गुण खुले होते हैं। भगवत गुण यानी क्षमा नाम का गुण खुला होता है। जब क्रोध कम होता है तो क्षमा नाम का गुण खुला होता है। क्षमा, प्रेम, नम्रता, ऐसे सारे गुण खुले होते हैं। और इन गुण की वजह से वो दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं, मनुष्य मात्र को, जीव मात्र को मार्गदर्शन देते हैं। सही जीवन कैसे जिया जाए, धर्म क्या है, सच्चा सुख कहाँ है। भगवान का एक ही उद्देश्य है कि जीव मात्र का कल्याण हो। कल्याण के दो पहलू हैं, एक तो संसार व्यवहार में रहते हुए व्यवहार की कठिनाइयों का, व्यवहार के दुखों का कैसे निवारण करें, और दूसरा हम सनातन सुख, हमेशा का परमानेंट सुख किस तरह से प्राप्त कर सके, इस बात का मार्गदर्शन देते थे। भगवान के यही उद्देश्य है, जीव मात्र का कल्याण, मनुष्य मात्र का कल्याण। तो बात ये कलयुग में आज के जो समय की बात है, इसमें हर जीव, हर मनुष्य सुख की खोज में है। उसको सुख चाहिए, शांति चाहिए। सामान्य तौर पे हमारे पास सुख है, लेकिन इंद्रिय का सुख है। कुछ बहुत अच्छा खाना खाया, होटल में गए, इंद्रिय का सुख है। कुछ पिक्चर देखा तो इंद्रिय का सुख है। वो टेम्पररी सुख है या परमानेंट सुख है? आप थोड़ा बातचीत कर सकते हैं मेरे साथ में। हाँ, आपके हाथ में माइक है। परमानेंट है या टेम्पररी सुख है? टेम्पररी। हाँ, और हम सबको परमानेंट सुख चाहिए या टेम्पररी सुख चाहिए? परमानेंट सुख चाहिए बस। तो हम अरे भले हम कोई भी धर्म को फॉलो करें, कोई भगवान, कोई भी गुरु को फॉलो करें, जीव मात्र को सुख चाहिए। इंसान तो नहीं, अगर जानवर भी है, कुत्ता है तो कुत्ते को रोटी देंगे तो अच्छा लगेगा, लकड़ी दिखाएंगे तो पसंद नहीं करेगा। छोटी सी चींटी है तो उसको शक्कर का दाना मिलेगा तो खुश होगी, उंगली रखेंगे, रुकावट करेंगे तो दुख होगा। तो जीव मात्र सुख की खोज में। अब प्रश्न सिर्फ इतना है कि वो सुख परमानेंट और हमेशा का कहाँ से प्राप्त हो। टेम्पररी सुख तो हमको मिल गया है, होटल में, मूवीज में, कपड़े में, शॉपिंग में, बातों में, रिश्तेदारी में, सब में है। लेकिन सही सुख कहाँ है, परमानेंट सुख कहाँ है, इतनी ही बात सिर्फ भगवान ने बताई है। सारे भगवानों ने यही बात बताई है। उन्होंने इतनी बताया कि ये परमानेंट सुख, ये जो हम सुख लेके माने हैं, आज जो हमारे पास सुख है, वास्तव में वो सुख है या नहीं, इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं पहले। अगर उसमें सुख होता, मानो पिक्चर देखने में 3 घंटा मैंने अच्छा पिक्चर देखा, मजा आया, अगर मैं वो 8 घंटा 24 घंटा देखूं तो क्या मेरा सुख 8 गुना हो जाएगा? नहीं होगा। एक बढ़िया पकवान है, मिठाई है, मानो रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, रसगुल्ले में मजा आता है, तो अगर मैं 1 महीने के लिए रोज रसगुल्ला खाऊंगा तो क्या मुझे सुख मेरा बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो वास्तव में अगर उसमें सुख है, वास्तव में रसगुल्ला में सुख है, मिठाई में सुख है, कपड़े में सुख है, तो बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ता नहीं है। दूसरी बात, आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है इसलिए आपको सुख देता है। जिसको रसगुल्ला पसंद नहीं है तो उसको तो और भी दुख देगा। उसको अगर रसगुल्ला खाने को दे, या घर में किसी को डायबिटीज है, सब खा रहे हैं और उनको डॉक्टर ने मना किया, तो वही रसगुल्ला उसको दुख देगा। तो कहने का मतलब ये माना हुआ सुख है वस्तुओं में, क्योंकि उसको अधिक करने से सुख बढ़ता नहीं है। और मान्यता है, क्योंकि एक की मान्यता है तो उसमें सुख है, एक की मान्यता नहीं है तो उसमें सुख नहीं है। और चलो मान भी लिया वो सुख है, मान भी लिया वो सुख है, वो परमानेंट है या टेम्पररी? उसको खाया उतना समय, 2 घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट मजा आया, उसके बाद कुछ नहीं। तो ये तो सिर्फ एक अंगुली निर्देश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के जो प्राप्त सुख हमारे पास है वो टेम्पररी है, वो माने हुए है, भ्रांत सुख है, वास्तव में सुख नहीं है, क्योंकि हमारी मान्यता है अधिक करने से सुख मिलता नहीं है। इसीलिए खोज हमें ऐसे सुख की करनी है जो आने के बाद जाए नहीं और इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि ये जो सारे सुख मैंने बताए वो शरीर के ऊपर आधारित है। आँख सही है, अच्छी है तो टीवी से सुख मिलेगा,
शरीर स्वस्थ है तो भोजन से सुख मिलेगा, बाहर घूमने से मिला, यानी शरीर के ऊपर आधारित सुख है। सुख तो ऐसा होना चाहिए जो शरीर पे आधार नहीं रखता है, जो स्वतंत्र है और परमानेंट है। यही सुख इन सब भगवंतों ने प्राप्त किया हुआ था और यही सुख मनुष्य मात्र को देने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की बात कर रहे थे। ये समय तो ऐसा है, अगर मैं किसी को पूछूं तुझे क्या चाहिए, तो सामान्य तौर से एक जवाब आता है कि और कुछ नहीं मिला तो मन की शांति चाहिए। क्योंकि आज का समय में स्ट्रेस इतना है, चिंता इतनी है ना, सुख मिले ना मिले, चिंता कम हो जाए, नींद अच्छी हो जाए, क्लेश कम हो जाए तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, जहाँ पे टकराव बहुत आम बात हो गई है। व्यू पॉइंट्स के मिसमैच है, मेरा दृष्टिबिंदु, घर के सभ्य का दृष्टिबिंदु, दूसरों का दृष्टिबिंदु मैच नहीं होते और टकराव होते रहते हैं। तो ऐसे समय में जहाँ पे टकराव होते रहते हैं, जहाँ पे शांति नहीं है मन की, वहाँ पे सुख कहाँ से खोजे और कहाँ पे खोजे। तो दादा भगवान जो इस तस्वीर में है, वो उनका संक्षिप्त में परिचय दूं तो वो आत्मज्ञानी पुरुष थे। उनका नाम अंबालाल मुलजी भाई पटेल था। बादरण गांव के निवासी थे, बड़ौदा से कुछ 30-35 किलोमीटर आगे है। कॉन्ट्रैक्ट का धंधा करते थे, शादीशुदा थे। और उनको 1958 में सूरत के रेलवे स्टेशन पे वो बैठे थे। व्यारा सूरत से आगे है, वहाँ से वडोदरा की ओर लौट रहे थे। सूरत स्टेशन पे उनको ट्रेन चेंज करना था, शाम का समय था, बाकड़े पे बैठे थे। वहाँ पे शाम को उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, यानी इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य अनावरण खुला हो गए। सुख क्या है, दुख क्या है, देवगति नरगति क्या है, क्या करने से सुख मिलता है, क्या करने से दुख मिलता है, इन सारे रहस्यों का खुला हो गया। और खुद कौन है, सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद कौन है उसका उनको अनुभव हो गया। आत्मा क्या है उसका अनुभव हो गया। उनको उनके आत्मा का साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार यानी मैं आत्मा हूँ और ये शरीर अलग है, दोनों सेपरेट हो गए, दोनों भिन्न हो गए, शरीर अलग और आत्मा अलग। और ये आत्मा का परमानंद का अनुभव उनको उस क्षण से शुरू हो गया। ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं, सामान्य दैनिक व्यवहार उनका चालू रहा और अंदर का परमानंद चालू हो गया। तो अंदर जो आत्मा प्रकट हो गई उनकी, उस प्रकट आत्मा को दादा भगवान का नाम देते हैं। बोले मैं जो हूँ, ये जो शरीर दिखता है वो ज्ञानी पुरुष है और अंदर संपूर्ण भगवान प्रकट हो गए हैं। और ये होने के बाद करीब 4 साल के बाद ये बात बाहर खुली हुई। तब तक उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था, लेकिन उनके एक रिश्तेदार भतीजे के लड़के के निमित्त से ये बात खुली हो गई कि उनको आत्मा साक्षात्कार हुआ है, भगवान प्रकट हुए हैं। और वो व्यवहार से भतीजे के लड़का था, तो चंद्रकांत भाई उसका नाम था। चंद्रकांत भाई उनको दादा करके संबोधन करते थे व्यवहार से। और जब उनको पता चला कि इनके अंदर भगवान प्रकट हो गए हैं, दादा करके बोलता था, लेकिन आपके अंदर भगवान प्रकट हो गए, इसलिए नाम बाहर निकला। और कुछ नहीं था, वो आत्मज्ञानी पुरुष थे। उनको आत्मा का अनुभव था, आत्मा का ज्ञान था, और लोगों को भी ये आत्मा का अनुभव और आत्मा का ज्ञान बांटते थे, देते थे। सो ये एक आत्मज्ञानी पुरुष का कहानी है, आत्मा पुरुष का विज्ञान है। उन्होंने जो बात रखी है जगत के समक्ष में कि हम वास्तव में कौन है, वास्तव में आपका नाम क्या है? नीमा। नीमा। तो अभी आप, मेरा नाम नीमा है या मैं नीमा हूं, सही क्या है? हाँ, दोनों सही। दोनों कैसे सही हो सकते हैं? हम क्या बोलेंगे, मेरा नाम नीमा है या मैं नीमा हूं? बाहर कोई पूछेगा तो सही क्या रहेगा? मेरा नाम नीमा। हाँ, अगर हम बोलेंगे ये मेरा घर है, तो मेरा घर
बोलने वाला घर से कोई अलग हो जाता है ना। आप बोलेंगे ये मेरी घड़ी है, तो घड़ी अलग और उसका मालिक अलग हो जाता है ना। मेरी घड़ी, तो घड़ी मेरी है ऐसा बोलने वाला मालिक हो जाता है ना अलग। मेरा घर, तो घर अलग और बोलने वाला अलग। तो इसी तरह आपका, जब हम बोलते हैं मेरा सर, मेरा शरीर, तो ये मेरा शरीर बोलने वाला कोई दूसरा होना चाहिए उससे अलग। तो ये अलग कौन है, इसी का पहचान करना है। यही हमारा खुद का स्वरूप है जो दादा भगवान ने पहचाना था और दूसरों को पहचान करवाते थे। ये बहुत संक्षिप्त में दादा भगवान का मैंने व्यवहार का परिचय दिया और उनका आध्यात्मिक सिद्धांत क्या था जो जगत के समक्ष वो देना चाहते थे, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम खुद कौन हैं? शरीर जो हमारा नाम है, नीमाबेन नाम है, वो शरीर का नाम है। आप कौन हो? मेरा शरीर बोलने वाला मैं कौन है? उस मैं को पहचानना है और उस मैं में ही सनातन सुख समाया हुआ है। जो हम सनातन सुख की खोज में कर जाते हैं, बस उसी में है। यानी वो हमारा आत्मस्वरूप है, हमारे अंदर ही है। इसी आत्मा को पहचानना है और इसके पहचान से, पहचान यानी अनुभव से, हमें सनातन सुख की प्राप्ति होती है, उसका अनुभव होता है। तो उनका संदेश एक ही था, दादा भगवान का संदेश एक ही था, खुद को पहचानो और इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। वो मोक्ष दाता पुरुष थे। मोक्ष यानी मुक्ति। पहले संसार में रहते हुए संसार के दुखों से मुक्ति, स्ट्रेस है, टेंशन है, टकराव होते हैं, अनबनाव होते हैं, इन सारे शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, वाणी के दुख है, कोई अनपशनप भूल के गया, ऐसे सारे दुख होते हुए दुखों से मुक्ति और फिर जन्म मरण से मुक्ति, मोक्ष। क्योंकि उनके पास आत्मानुभव था तो उनके पास ये सामर्थ्य था कि दूसरों को भी आत्मानुभव करवा सकते थे। त्याग कुछ नहीं करना है, संसार को छोड़ना नहीं है, गुरु को छोड़ना नहीं है, धर्म को भी छोड़ना नहीं है। आपका जो धर्म है वो, ये एक विज्ञान है, विज्ञान है। ये वैज्ञानिक से हम खुद कौन है, हमारा स्वरूप क्या है, आत्मा स्वरूप है, उसकी पहचान हो जाती है। और इस पहचान के बाद हमारा अंदर का सुख चालू हो जाता है। क्योंकि आत्मा सनातन है तो सुख भी उसका सनातन है। टीवी सनातन नहीं है, रसगुल्ला सनातन नहीं है, कपड़े सनातन नहीं है, शादी सनातन नहीं है, तो इसमें सुख भी मिलते हैं और टेम्परेरी मिलते हैं। और आत्मा सनातन है तो उससे सुख भी सनातन मिलता है। तो सनातन सुख को प्राप्ति करने का, सनातन सुख को प्राप्ति करने का ये अल्टीमेट स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। खुद को पहचानो, हमारा स्वरूप आत्मा स्वरूप, उसको पहचानो। आत्मा सनातन है, सुख उसका गुण है और इस सुख को प्राप्त करते हैं तो हम भी सनातन सुख को प्राप्त करते हैं और संसार हमारा अच्छा चलता है। आज ये चल रहा है, उसे और भी अच्छा चलेगा क्योंकि अंदर से सुख मिला है, बाहर के सुख की जरूरत नहीं है। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। और ये जो टकराव होते रहते हैं, जो स्ट्रेस टेंशन का निमित्त है, वो अहंकार निमित्त है। मैं हूँ, मेरी बात क्यों नहीं मानता है, मेरी बात क्यों नहीं समझता है, मैं इतना प्यार से उसको खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, बात कर रही हूँ, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा टेढ़ा क्यों बोल रहा है। ऐसे जो हमारे सामान्य प्रश्न होते हैं, इसके हल हो जाते हैं। क्योंकि मैं हूँ, मैं नीलमबेन हूँ, ये जो मान्यता है ये अहंकार है। सभी में अहंकार होता है, हर एक में होता है। तो ये हमारा अहंकार जब चला जाता है तो फिर टकराव भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अहंकार यानी मैं नीलमबेन हूँ, मैं जो मेरा नाम है, किसी का नाम चंदू है, रमेश है, जो भी है, ये मेरा नाम है या मैं हूँ, मैं रमेश हूँ, ये मान्यता है, जो बिलीफ है, उसी को अहंकार कहते हैं। क्योंकि ये गलत मान्यता है। वास्तव में मैं आत्मा हूँ लेकिन मानता हूँ मैं शरीर हूँ, तो ये गलत मान्यता को अहंकार कहते हैं। और सही मान्यता प्राप्त हो जाती है कि नहीं मैं वास्तव में आत्मा हूँ, तो अहंकार चला जाता है। यह आसान नहीं है, खुद सही मान्यता नहीं ला सकता है, खुद आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता है। जिसके पास वो अनुभव है वो करवा सकता है। जैसे आपको अगर सोने की अंगूठी बनानी है तो क्या करोगे आप?
उन्हीं के पास हाँ, अगर हम बीमार है तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर। बस तो इसी तरह हम अगर आत्मा का अनुभव करना है तो आत्मा ज्ञानी पुरुष के पास जाना है, तो हमारा काम तुरंत हो जाएगा। और खुद को अगर सोने की विटी बनानी है तो मेहनत लगेगी, किताब लाओ, उसके प्रोसीजर सुनो, कैसे करते हैं वो करते हैं, और कितना समय भी जा सकता है। तो ये शॉर्टकट है। आत्मज्ञानी पुरुष है तो उनकी कृपा से हमें ये आत्मानुभव प्राप्त होता है, और आत्मानुभव प्राप्त होता है तो हमारा अहंकार चला जाता है, और अहंकार चला जाता है तो ये सारे व्यवहार के प्रश्न हल हो जाते हैं। संसार चल रहेगा, वही अब लेडीज है तो घर गृहस्थी संभालेंगे, जेंट्स है तो बाहर का नौकरी धंधा करेंगे, और परिवार का और व्यवहार का बहुत उत्तम निकाल होगा, क्योंकि टकराव धीमे 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 कम हो जाएगी, अहंकार खत्म हो गया और अंदर का सुख बढ़ते जाएगा, आत्मा सुख बढ़ते जाएगा। हमारे जुने जो कर्म है वो जैसे जैसे खप जाएंगे, पूरे होते जाएंगे, वैसे वैसे हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये था दादा भगवान की फिलॉसफी, आध्यात्मिक जो सिद्धांत कहना चाहते थे वो मैंने बहुत संक्षिप्त में बता दिया आपको। दादा भगवान ज्ञानी पुरुष थे, संसार में थे, संसार योग के लिए मोक्ष मार्ग बताया, स्वरूप की भान करवाई, अहंकार से मुक्ति दिलाई, आत्मा अनुभव करवाया, और संसार में रहते हुए मुक्ति के लिए। अभी उन्होंने आत्मा के बारे में तो बहुत सारी बातें की है, आत्मा का स्वरूप, उसके गुण, साथ में एक अनोखी देन जो उनकी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये कलयुग है, ये समय ऐसा है कि इंसान को सही रास्ते पे चलना है तो भी नहीं चल पाएगा, झूठ नहीं बोलना है तो भी बोलना पड़ता है, रिश्वत नहीं लेनी है तो भी लेनी पड़ती है। ये कलयुग का एक कर्म का इस प्रकार के सारे हिसाब है। तो इस उलझन से जब तक इंसान बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो भगवान की भक्ति करना भी चाहे तो नहीं कर पाता है। अब माला लेने बैठते हो, भगवान का नाम, तो कहीं ना कहीं हमारा विचार चले जाते हैं, चित्त बाहर भटकता है। ऐसे समय में लोगों को सबसे पहले व्यवहार से शांति मिले, ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है। व्यवहार की बातें, बहुत सिंपल बातें जो बहुत महत्व भी है। परिवार है, हस्बैंड वाइफ है, तो कैसे आदर्श जीवन जिए, पति पत्नी ने एक दूसरे का कैसे व्यवहार करे ताकि टकराव ना हो, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करे माँ बाप ने ताकि उनके साथ टकराव ना हो, बच्चों ने माँ बाप के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनकी बातें भी, ये बातें भी उन्होंने संसार की बातें भी बताई है। दूसरा एक अहम बात इस जमाने में है पैसा। सबको पैसा चाहिए, जिसके पास है उसको ज़्यादा चाहिए, जिसके पास नहीं है उसको चाहिए। तो लक्ष्मी के जो सिद्धांत है वो भी उन्होंने बहुत सरल भाषा में बाहर खुले किए हुए हैं। लक्ष्मी जी आती कैसे है, उसका उपयोग क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ऐसे सरल उपाय बताए हुए हैं। और एक आदर्श जीवन किस तरह से जिया जाए, जिसकी बहुत ज़रूरी है आज, वो भी बातें खासी बताई। बातें तो काफ़ी है, ये तो मैंने एक संक्षिप्त में पूर्व भूमिका रखने की कोशिश की है। मैं निवेदन करूंगा आपसे, अगर कोई कुछ प्रश्न है तो पूछे, तो आगे की बात हम चलाते हैं फिर। हाँ जी, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आपने बोले कि जितने भी सुख है, वस्त्र, रसगुल्ला, पिक्चर, वो सब नश्वर है, ऐसा आपने बताया अभी, और इसलिए हमें वो सब सुखों को छोड़कर सनातन सुख के तरफ जाना चाहिए। छोड़ने को नहीं कहा मैंने छोड़ने को नहीं कहा है, मैंने सिर्फ पहचान कराई कि वो सुख है, अपनी जगह पे सही है, टेम्पररी है और आधारित सुख है। हाँ, वो मतलब आपने बोला कि ये सब सुख शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, तो हमें सनातन सुख की ओर जाना चाहिए, बराबर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि
जिसका जन्म होता है उसका नाश होता है। हम्म, तो मतलब जिसका जन्म होता है वो नश्वर होता है। नश्वर मतलब नॉन परमानेंट, जो कि कायमी नहीं है, परमानेंट नहीं है। जो खुद फिर वो शरीर है, शरीर की बात करते हैं अभी, जिसका नाम होता है, उसका घर होता है, उसके कपड़े होते हैं, उसके सुख के साधन होते हैं, पर वो सब नश्वर है। तो जो नश्वर है उस वो सनातन सुख क्यों पाए और पाने के बाद उसको क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये बताए। जो एक मनुष्य है वो तो नश्वर है, तो फिर जो उसका जीवन काल है उसी दरमियान जो उनको नॉन परमानेंट जो सुख मिलते हैं वो सुख वो प्राप्त करेगा और अपना जीवन काल पर्याप्त करेगा, पूर्ण करेगा। और फिर जब ईश्वर का आदेश होगा तो वो अपना देह छोड़ देगा। तो इसमें क्या बुराई है, क्यों नहीं करें? इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी को इस संसार के टेम्पररी सुख से संतोष है तो उसके लिए मोक्ष की जरूरत नहीं है। उसको मोक्ष किसके लिए चाहिए? जिसको इस संसार के दुख से वो थक गया है, संसार के दुख से जिसको मुक्ति चाहिए, ये संसार उसको लगता है बंधन जैसा लगता है, जिसको बंधन का अनुभव है उसी को मोक्ष की जरूरत है या मुक्ति की जरूरत है। सबके लिए मुक्ति की जरूरत नहीं है। अगर आप टेम्पररी सुख से खुश है तो इट्स ओके, इट्स ओके, सही बात है। जिसको इसमें सुख नहीं लगता है, जिसमें बंधन लगता है, बंधन जिसको लगता है उसी के लिए मुक्ति की बात है। मुक्ति की बात सबके लिए नहीं है। मैं बात कर सकता हूँ? हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि युगों से हम देखते आ रहे हैं कि मनुष्य, पशु, पंखी, वनस्पति वो सब नश्वर है और उन सभी का एक जीवन काल प्रस्थापित किया गया है। मतलब कोई 10 साल, 20 साल, 100 साल का, कोई 125 साल भी जीता है, पर इससे आगे नहीं जीते। अभी ये जो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ लाइफ है उसमें जीना है, या तो फिर वो मनुष्य है या फिर और कोई पशु पंखी प्राणी। अब अपने जीवन काल में अभी हम तो मनुष्य है तो थोड़ा बहुत हमें जानकारी है, जिसको प्रज्ञा बोलते हैं, वो प्रज्ञा हम में है और हम समझ सकते हैं कि भाई ये वर्ज्य है, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ऐसे नहीं व्यवहार करना चाहिए। पर जो हाथी, घोड़ा, गाय वो वगैरह जो पशु पंखी है उनको तो भाषा भी नहीं है, वाणी भी नहीं है उनके पास, और वो बोल भी नहीं सकते और कुछ समझ भी नहीं सकते। और फिर भी जो प्राकृतिक उनके अंदर जो आता है कि भाई ये जो है वो घास खाता है, वो कोई नॉनवेज नहीं खाएगा, जो दूसरा जो है सिंह जैसा तो वो नॉनवेज खाएगा, इसी तरह वो प्राकृतिक है, बराबर। पर उनके सभी का जीवन काल क्योंकि नश्वर है, वो लोग एक डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड रादर, वो उनका जीवन काल है, वो नश्वर है। अभी जो आप बोल रहे थे उनमें जो दुखी है, तो दुखी क्यों होते हैं? ये आपने बोला अभी पैसा, लक्ष्मी के बारे में भी बात किया है दादाजी ने, तो हम ये बोलते हैं कि किसी को भी पूछो, जीवन के लिए, जीवन पर्यंत आपको जीने से अलग अलग स्टेज में वो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। वो आपको छोटे बच्चे हो तो स्कूल में जाना पड़ता है, उसके बाद आपको कोई व्यवसाय या नौकरी करना पड़ता है, उसके बाद आपके बच्चों के लिए। आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरा ये है कि ये सब, ये जिंदगी हमें जो दी है ईश्वर ने, उसमें ये कंपल्सरी है। इसके अलावा जो आपने बोला, तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि ये तो
एक प्री कंडीशन है जीने के लिए, तो उसमें उसको कैसे छोड़ के सबको क्या सब त्याग करके साधु बनना है, तभी तभी ये मोक्ष मिलेगा, और मोक्ष मिल रहा है तो साधु बनना ही चाहिए। इसमें दोनों में से क्या पसंद करें? देखो, साधु बनना जरूरी नहीं है, वो एक मार्ग है, वो एक त्याग मार्ग है कि संसार को त्याग करता है, साधु बनता है, ताकि वो एक लक्ष्मी और विषय दोनों का त्याग करता है और अपने आत्म साधना में थोड़ा आगे बढ़ने के एक प्रयास है। वो एक मार्ग है। और वो मार्ग क्या है, वो भी खुद की खोज में है। सनातन सुख कहाँ है, मेरा सही स्वरूप क्या है, उसकी खोज में वो एक क्रम मार्ग है। वो अपनी जगह पे सही है, सबके लिए नहीं है। वो जिसको इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है, उसके लिए ये सब चीजें हैं। अध्यात्म सबके लिए नहीं है। उसमें जिसको ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है, तो उसमें एक मार्ग वो त्याग मार्ग है, साधु संन्यास वाला मार्ग है, और दूसरा मार्ग ये दाता की कृपा से अक्रम मार्ग निकला हुआ है। अक्रम यानी बिना क्रम का, जहां पे एक ज्ञानी पुरुष है, आत्मज्ञानी पुरुष प्रकट हुए हैं, जिनको आत्मा का स्पष्ट अनुभव है, उनकी कृपा से हमें आत्मा का अनुभव प्राप्त हो सकता है। तो इस मार्ग में त्याग की जरूरत नहीं है, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। त्याग जब करना है, लेकिन अहंकार का त्याग करना है, वो उनकी कृपा से होता है। अहंकार यानी मैं जो नामधारी हूं, ये मान्यता है, ये अहंकार का जब त्याग हो जाता है, तो राग द्वेष अपने आप कम हो जाते हैं और मुक्ति का अनुभव संसार में रहते हुए प्राप्त हो सकता है। तो ये मार्ग मोक्ष का है, लेकिन एक कृपा मार्ग है, एक अक्रम मार्ग है। संसार में रहते हुए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अहंकार हमेशा कर्म कब बनते हैं, जब कर्म कोई करता हो, कर्म को बनाने वाला कोई कर्ता पुरुष हो। यानी मैं नामधारी हूँ, मैंने रसोई बनाई, मैं पैसे कमाया, मैंने बनाया, मकान बनाया, मैं करता हूँ, ये जब भान है, तब उसको अहंकार कहते हैं और नए कर्म बनते हैं, अच्छे या बुरे। किसी को सुख दिया, दान दिया तो पुण्य बनता है, किसी को दुख दिया तो पाप बनता है, और फिर उसका फल उसको भुगतना पड़ता है। तो जब तक अहंकार है, तब तक करता है और तब तक कर्म नए बनते हैं। इस मार्ग में, दादाजी के अक्रम मार्ग में होता क्या है कि मैं कौन हूँ, इसका हमें अनुभव हो जाता है। पहले मैं शरीर हूँ या मेरा जो नाम है, ये मान्यता थी, और उसके बाद होता है कि नहीं, मैं वास्तव में तो आत्मा हूँ, ये अनुभव कृपा से होता है। तो मैं अगर आत्मा हूँ तो मैं करने वाला रहता नहीं हूँ, और जब मैं करने वाला नहीं हूँ, करता नहीं हूँ, तो नए कर्म बनते नहीं हैं। तो नए कर्म बनने बंद हो जाते हैं। ये एक विशेषता है, एक स्पेशलिटी है। नए कर्म बनते नहीं हैं, और जो हम लेके आए हैं वो पूरे पुराने कर्म हमारे खत्म हो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जब कर्म 0 हो जाते हैं, ना पाप बचा ना पुण्य बचा, तो मुक्ति हो जाती है, जन्म मरण से मुक्ति। जन्म कब लेना पड़ता है, जब कर्म को भुगतना है तो जन्म लेना पड़ता है। जब कर्म ही नहीं बचे तो जन्म ही खत्म हो जाता है। तो ये एक थोड़ा अलग से मोक्ष मार्ग है, लेकिन एक शॉर्टकट है इन अ वे। कृपा से कर्ता पद निकल जाता है, नए कर्म बनते नहीं है, और जो पुराने है उसका निवाड़ा कैसे लाना है। हमने शरीर तो लिया है, जन्म लिया है, जैसे बोला आपने, एक फाइनाइट टाइम है, उसका एक निर्धारित समय है आयुष्य कर्म का। तो अभी आज से मैंने ज्ञान लिया आत्मा, तो मेरे पूर्ण अंत तक कैसे जाना है, कैसे जीवन जीऊँ। अभी जो कर्म तो लेके आया, मेरा परिवार लाया हूँ, मेरे साथ एसोसिएटेड जो भी व्यक्ति है, नौकरी धंधा है, उनके साथ राग द्वेष जो मेरा हिसाब है वो कैसे निकाल करूँ, ऐसे समझ देते हैं और उससे बहुत ही अच्छी तरह से छुटकारा पाते हैं। ये उसका मर्म है। अभी और लोगों को अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो मैं भरत आनंद जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे की बात वो चलाए थोड़ा, और इनके भाभी आई है तो इनसे भी थोड़ी बात करें। भरत आनंद।
हेलो हेलो, ये भाई ने ये जो सवाल पूछा उसके बारे में मैं एक उदाहरण पेश करता हूँ। अभी व्हाट्सएप पे आया था कि रेमंड मिल का मालिक जिसके पास 12,000 करोड़ मिलकत है, कितनी 12,000 करोड़ मिलकत है, फिर भी वो आज किराए के मकान में रहता है, अब दादा भगवान क्या सिखाते हैं कि हमारे संसार में क्या है, ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, और ये सब दुर्लभ सुख है। ये जो सुख है उसका कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े साधु संत क्या सिखाते हैं, अपन ऐसे सोच के मेरा निवेदन है आपसे, मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है कि समय की मर्यादा को रखते हुए अगर कोई स्पेसिफिक संक्षिप्त में प्रश्न हो तो पूछे, क्योंकि हम सबका समय इस तरह से होगा। अगर आपको कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। अच्छा, वरदान ये अगर પૂછ્યો ગુજરાતી હિન્દી બંને પૂછાય. આ હિન્દી ભાષી છે ને તો પૂછ્યો ગુજરાતીમાં, જવાબ હિન્દીમાં આપીશ. ના કઈ વાંધો નહીં, પૂછ્યો એટલે આપણે પહેલી વાર ભેગા થયા ને. ક્યાં રહો છો? સુરત. અચ્છા, પૂછવું છે કંઈક? બહુ સારું, તમારે કંઈ પૂછવું નથી ને? આપણે પ્રશ્નો ઊભા નહીં કરવાના. આપણે તો શું છે કે આ જન્મ મળ્યો છે ને, तो एक सादी सीधी बात, एक सिंपल बात करते हैं कि जन्म हमें मिला है, क्यों मिला है? तो पिछले जन्म में हमें जो भी ज्ञानी मिले, उन्होंने जो हमें ज्ञान प्रदान किया वो हमने सही मान लिया, और उसके हिसाब से हमने सबके साथ जो डीलिंग किया, तो कैसा डीलिंग किया? राग या द्वेष वाला, आइदर राग या तो द्वेष। किसी ने आपके साथ अच्छी तरह से बर्ताव किया तो आपको उनके प्रति राग हो जाएगा, और किसी को आपका नुकसान किया तो द्वेष हो जाएगा। तो क्या बात है कि राग द्वेष वाला व्यवहार पिछले जन्म में हमसे हो चुका है। इससे क्या हुआ कि हमारा जो धागा है उससे बहुत सारी गूंच हो गई। अभी ये जन्म में ये सारी गूंच सामने आती है, तो गूंच को खोलना पड़ेगा ना। तो आपने गूंच खोल दिया तो बहुत हो गया, इतना करो। समझ में? आप भले बिना से सुख को एंजॉय करो, कोई ना नहीं बोलते, एंजॉय करो, मगर जब भी कोई भी गूंच सामने आए तो सबसे पहले वो गूंच को खोल दो। समझ में ऐसी बात है? मानो किसी ने आपका अपमान किया तो भीतर समझ जाएगा ये पिछले जन्म की गूंच सामने आई। अभी मुझे क्या करने का है? वो गूंच को ज्यादा बढ़ाना है कि खोलना है, वो आपको तय करने का। और सब अलग अलग तय कर सकते हैं, सब स्वतंत्र है। मगर जिनको धर्म के रास्ते पे, मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ना है, उनके लिए ये गूंच खोलने का निश्चय होना चाहिए। समझ में? मानो आपने किसी को पैसा दिया, वो बोले 2 महीने में वापस कर दूंगा, और 2 महीने के बाद वो वापस नहीं करता है, बोलते 1 महीने के बाद। ऐसे करते 6 महीना 1 साल हो गया, वापस करता ही नहीं है। फिर आपको लगता है कि उनकी दानत ही खराब है, दानत उनकी नीयत ही खराब है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, उनकी नीयत ही खराब है। तो फिर हमें क्या होगा? उनके ऊपर द्वेष वाले, मेरा पैसा गया, अभी ये होगा वो होगा। भगवान क्या बोलते हैं कि वो आपका पैसा लेके बैठ गया, वापस नहीं दे रहा है, उनकी नीयत ही खराब है। तो अभी क्या करने का?
वो गूंज आपको खोलने का, समझ में? तो ऐसा सुबह से शाम तक बहुत सारी गूंचें सामने आती है। वो मोक्ष का मतलब और कुछ नहीं है, आपके धागे में से सारी गूंचें निकल गई, आप मुक्त हो गए। ऐसा नहीं चाहिए आपको? ऐसा ही चाहिए ना? चलो अगर बीजी बात हो तो क्या समझे? हमारी हिंदी समझे? माई तो बोली तो बाबा बोले तो हिंदी बोलना पड़ेगा। माँ को पूछो आता नहीं। कौन से पूछे वो प्रश्न? माजी तुमने कहो ना कौन प्रश्न पूछे? स्मिता पूछे वैसा ले पूछिए, वैसा ले सोच रही पूछिए। પ્રિન્સિપાલ છે ઓહો, એમની બાજુમાં ડોક્ટરના વાઇફ છે कौन प्रिंसिपल कौन से? आप बाजू का बाजू? સારી વાર આવી सोच के पूछो क्या प्रश्न है उसमें? प्रिंसिपल है ना, स्कूल में टीचर है, प्रिंसिपल है, तुमको तो प्रश्न पूछने का बहुत आसान हो जाता है ना, वो पेपर निकालते रहते हैं। पढ़ाई के बारे में तो नहीं है ना, ये तो दूसरी लाइन पे सोचना है, ये तो एजुकेशन नहीं है। हाँ हाँ, ये एजुकेशन नहीं है नहीं? एजुकेशन नहीं है, मेरे सब्जेक्ट में नहीं है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट में थोड़ा गहराई में ये- जाऊँ तब मैं पूछूँ। मगर ये एक्चुअली अध्यात्म कैसा है, लोग जो मानते हैं कि अध्यात्म में बहुत गहराई में जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अध्यात्म सबसे आसान है। ये दूसरा एजुकेशन वो सब है, वो तो डिफिकल्ट है, मगर अध्यात्म आसान है। आसान मेरे लिए भी इसलिए है, ये दिल को सरल रखना चाहिए, मतलब दिल में कोई पाप नहीं रखना चाहिए, पढ़ाई हो या नहीं हो। मुझे लगता है दिस इज द इजी वे टू गो टू गॉड, मुझे मेरे हिसाब से। ये बराबर है, दिल में पाप नहीं रखा तो बहुत बड़ी बात हुई नहीं। हाँ, तो ये सिंपल थी। मगर ऐसा होता है कि कितने को ऐसा दिल में पाप नहीं रखना है, फिर भी रखना पड़ता है। संजोग आते हैं ना, तो ऐसे डाक देते हैं, दिल में रखते हैं। समाज के लिए, सिचुएशन के लिए। तो ये ऐसी जो सिचुएशन आती है ना, कि कभी कभी हमें नहीं करना है तो भी करना पड़ता है, और कभी हमारी खुद की वीकनेस ऐसी होती है वो खुला नहीं करने देती। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आता है, आपको करना नहीं चाहिए लेकिन आप कर रहे हो, ठीक है, हाँ। तब दिल में भगवान से एक बार माफी मांग लो, भगवान ये मुझे नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ड्यू टू द सिचुएशन। बहुत अच्छी बात है। इतना करेंगे तो बहुत हो गया हाँ, तो क्लियर हो गया ना। ना, बहुत है जो कि आसान है ना। हाँ, आसान है। तो आप समझते भी हैं। आप बोलते भाई समझती नहीं हो, ऐसा ऐसा कितना नहीं है। आप परफेक्ट समझते हैं। और कृष्ण भगवान ने भी ऐसा बोला, अर्जुन को युद्ध लड़ना था, हाँ, लड़ना था, अपने खून के लिए वो पीछे हट रहे थे, सब मेरे खून के रिश्ते हैं। इससे मेरा मतलब क्या है कि अर्जुन को क्या हुआ, युद्ध लड़ने के लिए गया, पर सबको देखने के बाद क्या हो, नहीं मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, मुझे सबको मारना नहीं है। तुमको किसी को मारना था तो मारना नहीं था, फिर भी युद्ध लड़ना पड़ा, मारना पड़ा। तो भगवान आपकी क्रिया, आपकी एक्शन नहीं देखते, भगवान आपके भीतर आपका इंटेंशन क्या है, आपकी सिग्नेचर कहाँ है, वो देखते हैं। तो हमें अलर्ट का रहने का है कि सारे दिन में जाने अनजाने में गलत जगह पे, नेगेटिव में हम सिग्नेचर कर देते हैं, वहाँ अलर्ट हो गए और सिग्नेचर नहीं करते हैं, भले एक्शन में हो गया, एक्शन में आपको किसी पे गुस्सा भी आ गया, तो गुस्सा आ गया, वो तो एक क्रिया होगी, मगर भीतर रहेगा कि नहीं, ये गुस्सा आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरी गलती है। कभी
कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई इंसान को अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाना होता है, बट गलत रास्ते पे जाके पैसा कमाना होता है। हाँ। लेकिन वो अगर दिल में सोचे ना जी ये मैं गलत कर रही हूँ, डूइंग द रॉन्ग जॉब, लेकिन मुझे मेरे फैमिली के लिए करना पड़ता बराबर है, है। तो उसमें पाप लगता है। हाँ, कोई बात नहीं, करो, कोई प्रॉब्लम, पाप नहीं लगेगा, मगर उनका रास्ता है, पाप नहीं लगेगा। मगर आप ऐसा बोलेंगे पाप नहीं लगेगा तो आपका मन आउट ऑफ बाउंड्री हो जाएगा। और भगवान ने क्या बताया कि आपको जरूरत है, वो पैसा नहीं मिलता है तो गलत रास्ते से भी ले सकते हैं, मगर बाउंड्री, वो लिमिट रखने का, फिर वो लिमिट को क्रॉस नहीं करने का। और लिमिट के लिए, लिमिट जो बांधते हैं उनकी आज्ञा ज्ञानी के पास से लेनी पड़ती है, और फिर वो जो लिमिट है उनको तोड़ने का नहीं। समझ में? मैं आपको दादा भगवान की एक बात बताऊं। दादा भगवान के पास एक ऑफिसर आते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट में तो एक हमारा एक कॉमन है, हमारा एक कॉमन अभिप्राय है कि सब लोग रिश्वत लेते हैं, मगर वो ऑफिसर रिश्वत नहीं लेते थे। तो अभी ये तो बहुत पुरानी बात है, 70s की, तो उस समय सैलरी बहुत कम थी, तो घर में बच्चे हैं, बच्चे कॉलेज में पढ़ते थे, खर्च पूरा नहीं होता था। तो एवरी मंथ वो सब घर वाले सब वो ऑफिसर को डांटते रहते थे कि आपके साथ है सब, वो कितने पैसे लेके आते हैं, कितने अच्छे अच्छे मकान बना लिए, और आप तो वही के वही रहे। गुजराती और बोले कि तमे तो पंतुजी जेवा छो। समझ में आता है ये गुजराती? आप तमे पंतुजी तमे एवा ने एवा रह्या, तमारे लीधे अमारे सहन करવું पड़े। तो उन्होंने दादाजी को बताया कि दादा ऐसा होता है, फिर घर का सबका प्रेशर होता है। मैं सोचता हूँ कि चलो अभी मैं रिश्वत लेना शुरू करूंगा, मगर किससे तो एक बात करो, पैसे देने के लिए आता है तो मेरे हाथ दूसरे हैं, मैं ले नहीं पाता हूँ, और घर में एक क्लेश चालू रहता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए ना। सबने आदर्श की बातें तो बहुत की, पर कभी काम में लगी? आदर्श की बातें, आइडियल बातें तो हम करते हैं, वो दूसरों के लिए करते हैं, खुद के लिए थोड़ी होती। तो दादा बुआ ने बहुत प्रैक्टिकल बात बताई। क्या बताया? कि संपूर्ण नीति का पालन करो। क्या बताया? संपूर्ण नीति का पालन करो। वो नहीं हो पाए तो नियम से नीति का पालन करके, इसकी इतनी जगह पे तो मुझे नीति में ही रहना है। वो भी नहीं हो पाए तो अनीति भी कर, मगर अनीति नियम से कर। तो आगे क्या बताया? और वो नियम को तोड़ने का नहीं, वो नियम ही आपको मोक्ष पे लेके जाएगा। हाँ, क्योंकि वो आप क्या बात बोलते हैं, क्या बोलते? तो मैं एक बीच में एक बात बोलती हूँ, जो आपने तो बोला, जो वो आदमी को घूस लेना है जो भी हो, तो वो बाई प्रेशर ले रहे हैं, वो दिल से नहीं ले रहे। हाँ। वो बाई प्रेशर ले रहे हैं, तो उसमें तो पाप लगने का सवाल ही नहीं है ना। नहीं, मगर आप ऐसा सिंपल मान लेंगे कि वो बाय प्रेशर ले रहे हैं, उसमें पाप नहीं लगेगा, तो फिर वो रिश्वत लेते उनको, उनका दिल में आ जाएगा कि नहीं लेना चाहिए। हाँ, बाउंड्री क्रॉस हो जाएगा। तो बाउंड्री टूटेगी नहीं। तो कभी भी हम किसी को बोलते हैं कि आप किसी को भी बोलेंगे कि आपके दिल में इच्छा है, फिर भी ले रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बोलते हैं, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। नहीं, एक बात मैं बोलती हूँ, आपने जो बोला उसमें लालच जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। हाँ, बराबर है। इसलिए मैं आपको पूरा एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए। तो कैसी बात है कि नियम से अनिति करो, नियम आपको मोक्ष में लेके जाए। तो दादाजी ने वो ऑफिसर को पूछा कि
कि आपको एवरी मंथ कितने पैसे ज्यादा जरूरत है, तो बताया कि दादा मेरा 1200 का सैलरी आता है, दूसरा 1000 रुपया मिल जाए, उस समय की बात है। अभी तो मैसन आता है ना, लेबर आता है, वो एक दिन का 1000 से ज्यादा लेता है एक दिन का, उस मंथली सैलरी ऐसी। तो बोला एवरी मंथ मुझे 1000 ज्यादा मिल जाए तो मेरा घर का सब प्लेस बंद हो जाए। तो दादा भगवान को बता कि आप एक नियम लो कि एवरी मंथ मुझे 1000 रुपये का रिश्वत लेना है। वो नियम, फिर वो नियम को ब्रेक करने का नहीं। समझ में बात, सिंपल बात। तो ऑफिसर तो खुश हो गया कि तो बहुत अच्छी बात है। तो पूछने लगे दादा आप तो बोलते हैं कि 1000 रुपये का रिश्वत लेने का, मगर मेरी भावना तो मोक्ष में जाने की है, मेरा मोक्ष का क्या होगा? तो दादा ने बताया कि आप ये बाउंड्री तोड़ेंगे नहीं तो आपके मोक्ष की जिम्मेदारी मेरी, मैं जवाबदारी लेता हूँ। हिंदी गुजराती में तो जाता है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ऐसा बोल दिया। तो 3-4 महीने के बाद वो वापिस आया सत्संग में आया। फिर दादा ने पूछा कि बराबर है? दादा सब ठीक तो है, मगर इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पहले महीने मैंने 2-3 आदमी से पास से करके ऐसा 1000 रुपया ले तो लिया, अभी पैसा लिया तो सबको पता चल गया ऑफिस में कि अब ये मेरी लाइन में आ गए। पहले तो अलग थे, प्योर थे, अभी सबको पता चल गया, प्यून को भी पता चल गया कि अभी ये साहब पैसे ले रहे। तो कोई भी आदमी काम लेके आएगा, अभी 1000 रुपीज का जो लिमिट था वो बहुत पूरा हो गया, और बाद में कोई 500 रुपए का काम लेके आएगा, वो काम कर भी सकते हैं, मगर उनको ना बोलना पड़ेगा क्योंकि बाउंड्री आ गई, नियम आ गया। जब लेते नहीं थे तब ना बोलना बहुत आसान था, क्योंकि मैं प्रामाणिक हूं, मैं ऑनेस्ट हूं। वो जो इगोइज्म था, ऑनेस्टी का इगोइज्म, ऑनेस्टी का गैप, वो तो अभी निकल गया। और अभी सामने पैसे है और ना बोलना, कितनी शक्ति प्रकट करनी पड़ती है, ख्याल में। तो उन्होंने क्या बताया कि दादा पहले तो बहुत आसान था, मगर अभी तो बहुत मुश्किल हो गया है। मेंटल स्ट्रेंथ का जरूरी है इसके लिए। क्या मेंटल स्ट्रेंथ जो हाँ बराबर, वो अपना अंदर निश्चय शक्ति, निश्चय मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है, बराबर। फिर क्या हुआ कि दादा भगवान ने वाक्य तो सिंपल बताया और आज के जमाने में बहुत प्रैक्टिकल भी है, मगर आपको विचार आएगा कि दादा ने तो इसमें मोक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, वो कैसे? तो आपको समझाओ। हम मोक्ष में कब जा पाएंगे? हमारे भीतर के सारे दुश्मनों को हम जीत लेंगे तभी मोक्ष में जा पाते। क्या भाई, हमारे भीतर के सारे दुश्मनों को जीत लेते हैं तो आपके भीतर दुश्मन होंगे? होंगे नहीं। एक दो का नाम तो बताओ। हाँ बराबर है, हाँ गुस्सा है, जेलसी है, अहंकार है, बहुत सारे। तो भीतर के दुश्मन बराबर है। तो क्या बोले, क्रोध है, मान है, लोभ है, माया है, ये सब भीतर के दुश्मन है। तो ये सारे भीतर के दुश्मनों को जीतते हैं, बाद में मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं। कोई माने कि मैं इतनी माला फिराता हूँ, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, मैं इतना उपवास करता हूँ, मैं इतनी यात्रा करता हूँ, मैं इतना दान देता हूँ, मेरा मोक्ष हो जाएगा, भगवान मुझे मोक्ष में लेके जाएंगे। ऐसा नहीं। या कोई ज्योतिषी बता देता है कि आपका इलाज करोगे, तो ऐसा नहीं। तो वो ऑफिसर ने क्या बताया कि अभी क्या हो जाता है कि सब उनको भी पता चल गया, सबको पता चल गया, सब क्लाइंट को भी पता चल गया कि अभी ये साहब पैसे लेके काम करते हैं, तो किसी को ना बोलने के लिए कितनी बड़ी शक्ति चाहिए?
और भीतर अभी पैसा लिया, भीतर लोभ खड़ा होगा। अभी लोभ खड़ा हुआ मगर लोभ की बात नहीं सुनते हैं, अपने नियम में रहते हैं, तो भीतर जो लोभ की ग्रंथि है धीरे धीरे डिजोल्व होती जाती है, टूटती जाती है। तो ऐसे करते करते वो लोभ को जीत लेता है। पहले तो उनको बहुत मान मिलता, सब मान देते थे, रिस्पेक्ट देते थे, फिर सबको पता है कि बॉस कड़क आदमी है तो लोग डर के भी उनको रिस्पेक्ट देते थे। अभी सबको पता चल गया हमारे जैसे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता है, तो मान मिलना भी बंद हो गया। और पहले मान इतना मिलता था, इतना क्रोध भी करते थे। अभी खुद को पता चल गया कि अभी मैं इतना प्योर नहीं हूं, मैं रिश्वत ले रहा हूं, तो इतना क्रोध भी नहीं आएगा। समझे? तो दादा ने बताया है सिंपल, पर कैसा है कि आपके भीतर रहे हुए सड्रिपो, आपके भीतर रहे हुए क्रोध, मान, माया, लोभ, ये एक ही वाक्य को पकड़ के उनका पालन करते हैं, नियम को तोड़ते नहीं है, तो ये सब निकल जाते हैं। और जिनके क्रोध, मान, माया, लोभ निकल गए, वो कहाँ जाएगा? ये संसार में रहने के लिए अनफिट हो जाता है। तो मोक्ष के दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं, उनको मोक्ष पे जाना पड़ता है। ऐसे सिंपल बात है। आप एक साथ दोनों नाव में पैर नहीं रख सकते, आपको मोक्ष भी चाहिए और घर का जरूरत भी पूरा करना है, मुश्किल है, कोई एक रास्ता चुनना पड़ेगा। नहीं, पर ये आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताया समझ आया? कि ये व्यवहार में रहते हैं, जिंदगी में ऐसे बहुत सारे संजोग आएंगे, तो कैसे रहने का। ये तो क्या है, अभी आपको ज्यादा बताऊं, वो ऑफिसर थे, पैसे लेते नहीं थे, मगर भीतर क्या रहता था कि सब इतना बोलते थे लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए। तो अभी प्योर है, पर आगे दूसरे जन्म के लिए कौन से बीज बोते हैं? इम्प्योरिटी के। तो आज तो अच्छे दिखाई देते हैं, वह दूसरे जन्म में पूरा बिगड़ जाएगा। और ये नियम में रहे तो आज का भी नहीं बिगड़ेगा और आगे का भी सुधर जाएगा। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकल। और दूसरा क्या है, आपने बताया दूध में और दही में पाँव नहीं रख सकते। बात कैसी है, मोक्ष की बात, मुक्ति की बात, हम मोक्ष मुक्ति को समझते नहीं, इसलिए ऐसा होता है। एक्चुअली संसार में रहते हुए संसार की सारी जिम्मेवारी निभाते हुए आपको संसार में और चिंता नहीं होती है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप मुक्त रह पाते हैं। संसार के आदि व्याधि उपाधि आपको स्पर्श नहीं करते हैं, उनको मोक्ष बोलते हैं। बहुत कठिन है। हाँ नहीं बराबर, आप बोलते हैं बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। हाँ नहीं बराबर, आप क्या है कि ऐसा ही लगेगा, ये तो बहुत कठिन है। ऐसा कैसा हो सकता है कि संसार में रहकर चिंता नहीं हुए? ऐसा होगा कि पानी में रह के शरीर में पानी नहीं लगता। हाँ बराबर है, ये बहुत कठिन है। मगर कमल तो रहता ही है। हाँ, वो तो रेयर है, वो रेयर है। हाँ तो हम ह्यूमन बीइंग है, हम रेयर हो सकते हैं। पढ़ना पड़ेगा, पर लड़ाई हम ह्यूमन बीइंग है, हम हिंदुस्तानी है, हम रेयर होने के लिए जन्म लिया है। हम एज ए हिंदुस्तानी है, हम जो भारतीय है, हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल ही वही है। हमारे हिंदुस्तान के आदमी का जीवन का गोल पैसा कमाना, शादी करना, अच्छे काम करना, नाम बनाना वो नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट पे है। मगर जीवन का गोल क्या होना चाहिए कि संसार में रहकर खुद की पहचान कर ले। खुद की पहचान, मैं खुद कौन वो पहचान कर लिया और संसार में रहते हुए संसार से मुक्त रहना, वो हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है। खुद को नहीं जानना पड़ेगा। पहले पूर्णिया जी ने बात नहीं बताई, क्या आपका शुभ नाम?
स्मिता मीठा वॉमिट हाँ એટલે જ बात है। तो स्मिता जी आपका नाम है स्मिता, बराबर? तो हम सबको स्वीकार तो करना पड़ेगा, पर वो तो आपका नाम है ना, वो तो आपका नाम है। आपको स्मिता नाम दिया, इसे आपने मान लिया कि मैं स्मिता हूं। आपको मीता नाम देते थे, मीना नाम देते थे, नीता नाम देते, वो मान लेते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि बचपन में आपको नाम दिया गया और सब पुकारते स्मिता स्मिता स्मिता, तो आपके भीतर एक मान्यता खड़ी हो गई कि मैं स्मिता हूं। सही में स्मिता आपको दिया हुआ नाम है, एक व्यवहार चलाने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आप जब बोलते हैं कि मेरा नाम स्मिता है, इनका मतलब क्या हुआ कि स्मिता आपका नाम है, आप खुद नहीं है, आपको दिया हुआ नाम है। तो जैसे मान लीजिए मेरा घर है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा घर है, बोलूंगा ना? हाँ, ये सब ये जन्म के लिए है, आपका घर है, आपका नाम है। नहीं, वो तो बराबर है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो बोलते कि मैं स्मिता हूँ, तो स्मिता आपका नाम है, आप खुद नहीं है। जैसे हम बोलते मेरा फादर, मेरे मदर, वो मेरे मेरे बोलते हैं जहां भी, वो सब मेरे से मैं अलग नहीं है। तो आई एंड माई बाय डिफॉल्ट दे आर डिफरेंट, मगर अभी भ्रांति की वजह से आई और माई एक हो गया है। आप क्या मानते हैं कि मैं खुद ही स्मिता हूं? तो इतना ही प्रॉब्लम है। तो ये आई और माई सेपरेट हो जाए तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सिंपल नहीं? ये सिंपल है, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो मुझे लगता है टफ है, बिकॉज इट इज इल्यूशन। आप बोल रहे हो आई और माई को डिफरेंट कर, इट्स इल्यूशन। नहीं, यू हैव टू सेपरेट। नहीं, ऐसा है, दादा बोले क्या होगा कि यू हैव टू सेपरेट आई एंड माई। हाँ, बट बराबर है। हाँ, बट वो जाते हो, आप किधर भी जाते हो तो आपको उसी नाम से पुकारता है। हाँ, वो तो बराबर। वो लोग बोलेंगे आप वो ही हो। हाँ, वो लोग तो बोलेंगे, मैं क्या बता रहा हूँ, वो लोग 100% बोलेंगे कि आप स्मिता है। हाँ, तो आप स्मिता जी हो नहीं जाने गए आपको। हाँ, वो तो मैंने बोला ना, that is मगर कहाँ तक होते रहेंगे, आपकी बिलीफ गए वहां तक। इसलिए दादा भगवान ने बहुत सिंपल भाषा में बताया कि मैं स्मिता हूँ। इट्स ए फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ, सबसे पहली अज्ञान मान्यता। और मैं स्मिता हूँ, ये अज्ञान मान्यता है, तो दूसरी बहुत सारी अज्ञान मान्यताएं चिपक जाएगी। जैसे मैं इतनी उम्र की हूँ, मैं ये गांव की हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतनी इसकी पत्नी हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसकी बहन हूँ, इसकी चाची हूँ, इसकी मामी हूँ, इसकी बुआ हूँ, इसकी फ्रेंड हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ। वो सब कब चिपक जाएगी? जब आपकी ये पहली अज्ञान मान्यता है कि मैं स्मिता हूँ, तभी। तो दादा बाबा ने क्या बताया कि दुनिया में और कुछ नहीं करने का है, सिर्फ ये रॉन्ग बिलीफ को फ्रैक्चर करने का है और राइट बिलीफ को सेट करने का है। इतना सिंपल ही है। तो क्या होता है कि पूरा चेंज हो जाता है। मैं स्मिता हूँ, वो क्या हुआ, वो दृष्टि बहिर्मुखी हो गई। वेदांत के हिसाब से आपकी दृष्टि बाहर की ओर हो गई। और जब आपको आप खुद कौन है उनकी पहचान होती है, तो आपकी दृष्टि अंतर्मुखी हो गई। तो सिर्फ दृष्टि को एक 180 डिग्री टर्न करने का है, और कुछ करने का नहीं है। वो उसमें मेहनत नहीं है, संसार में मेहनत है। आपने क्या स्टडी किया था? मेरा एजुकेशन हाँ, बॉटनी में और बायोलॉजी में MSc ना। हाँ, तो आपने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया, मास्टर ग्रेजुएशन मास्टर किया? मास्टर किया और मेरा PhD कंप्लीट नहीं हुआ, PhD थोड़ा बाकी है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मैं क्या बताऊँ, मास्टर किया नहीं। अभी स्मिता जी आप मुझे इतना बताओ कि when you are born, जब आपका जन्म हुआ तब आप ये मास्टर थे?
तो मास्टर होने के लिए आपको 21-22 साल तक मेहनत करना पड़ा, बराबर है? मेहनत करना पड़ा। तो एक ऐसी बात है कि आप सही में जो है वो होना है तो उसमें मेहनत नहीं है, पर आप जो नहीं है वो होना है उसमें बहुत मेहनत है। ख्याल में? तो ये कैसा है, दृष्टि बदलती है तो आप जो है वो हो जाते हैं, तो उसमें मेहनत नहीं है, वो इंस्टेंट हो जाता है। और जो नहीं है वो बनना है, उसमें बहुत मेहनत है। आपको ख्याल में? पूछते ना बीच में इसलिए समझने के लिए कि ये सब रॉन्ग बिलीफ को फ्रैक्चर करने का है। दादावन क्या बोलते थे कि सेपरेट आई एंड माई विच ज्ञान इज सेपरेटर। तो हम जिसको माई 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 बोलते हैं ना, वो माई को अलग रखे तो जो प्योर आई, कैपिटल आई रहा है, कैपिटल आई इन्वर्टेड कॉमा, प्योर आई, वो भगवान हो गया। एक क्वेश्चन है, भगवान के पास हम लोग जाते हैं ना, मैं भी रोज मंदिर जाती हूँ, तो इधर भगवान के पास जाके क्या करना है? कुछ मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? हाँ हाँ, आप क्या करते हैं? मतलब क्या आपने प्रश्न पूछा, अच्छी बात है। हाँ। मगर आपको मैं पूछ रहा मैं हूँ, शिव मंदिर जाती हूँ, जाके मेरे संसार के लिए ही मांगती हूँ कि ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग जो कर रहे हैं वही आप करें, तो कुछ गलत नहीं है। मगर क्या करना चाहे वो भाई आपको बताओ, मैं एक बात देख लेती हूँ, क्या करना चाहे वो बताओ। भगवान वो बता रहे हैं कि उसके पहले भी बताना चाहते हैं। हाँ आप बोला, बता दीजिए। तो मैं तो बंगाल से हूँ ना, तो आप लोगों को पता है कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो बेसिकली ही वॉज वेरी पोअर। तो वो रामकृष्ण के पास आके रोज रोते थे, मेरा जमीन का तकलीफ है, मेरे घर पे पैसे का तकलीफ है। तो रामकृष्ण जी उसको एक दिन बोला कि तू मुझे क्यों बोलते है, तू काली माता के पास जाके बोल। तो उसको रोज भेजते हैं काली माता के पास, और रामकृष्ण जी पीछे खड़े रहते हैं। तो जब भी वो काली माता के सामने जाते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, काली माता को बोलते हैं मुझे भक्ति दो, तुम्हारे साथ प्यार दो। तो श्री रामकृष्ण उसको बोला कि तू कितना बेवकूफ़ है, तुझे मैं काली माता के पास भेजा कुछ मांगने के लिए, और तू हर रोज खुद के लिए, फैमिली के लिए कुछ नहीं मांगते थे, वापस आ जाते थे खुद के लिए भक्ति दो, ये दो। तो किसी को मांगना आता भी नहीं है। तो हम लोग तो संसारी है, हम तो मांग लेते हैं। हम तो मांग लेते हैं, हम तो पक्के मांग लेते हैं। अभी समझने के लिए आपको समझाओ, समझने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं, तो हम भगवान के पास हमें संसार में जो प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, फैमिली का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, तो हम हमारे संसार में जो प्रॉब्लम है वो संसार मांगते हैं, बराबर है। और भगवान जो है, भगवान संसार में फंसा हुआ है कि संसार से मुक्त है? मुक्त है। हम संसार में फंसे हुए, पर भगवान संसार से मुक्त है। अभी जो भगवान संसार से मुक्त है, जिनके पास संसार है ही नहीं, उनके पास जाकर हम संसार मांगते हैं, तो हम भगवान को डायलेमा में रख देते हैं, पसंद कर देते, खड़ी कर देते, भगवान के लिए धर्म संकट खड़ा कर देते हैं। तो भगवान के पास जाते तो भगवान के पास क्या मांगने का? आप कौन से भगवान की भक्ति करते हैं? शिव जी की। तो शिव जी है ना, शिव का मतलब है, शिव मीन्स कल्याण। जिनका खुद का संपूर्ण कल्याण हो चुका है और दूसरों का कल्याण करने का जिसमें सामर्थ्य है, उनको शिव जी बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, ऐसे शिव स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। तो शिव जी के पास जाते तो क्या बोलने का, भगवान को क्या बोलने का कि हे प्रभु, हे शिव जी, मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, तो आज मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं भी आपकी तरह भीतर के सारे दुश्मनों को जीत लूं।
अहंकार को, क्रोध को, लोभ को, मान को, माया को, राग द्वेष को, ईर्षा को, हरीफाई को, भीतर के सारे दुश्मनों को जीत कर, आप भीतर के सारे दुश्मनों को जीत कर शिव जी बन गए और सारे जगत का कल्याण कर रहे हैं। तो मैं आपका दर्शन करने के लिए आज आया हूँ, तब मुझे ऐसे आशीर्वाद दो कि मैं भी आपकी तरह ये सबको जीत कर आपके जैसा हो जाऊं। तो शिव जी सही में प्रसन्न हो जाएंगे। शिव जी को होगा क्या, पहली बार ऐसा भक्त आया कि जो मेरे पास है वो मांग रहा है। शिव जी को तो देना है मगर हमें मांगना नहीं आता है बस होने। तो ऐसा भगवान के पास मांगने का कि आपने जैसे आपके राग द्वेष को जीत लिया, क्रोध मान लोभ को जीत लिया, तो मुझे भी ऐसे आशीर्वाद दो कि मैं भी मेरे भीतर रहे हुए अहंकार को, राग द्वेष को, सबको जीत कर आपके जैसा हो जाए। समझ में? ऐसा मांगना। और ये ध्यान में रखना कि मैं खुद कौन हूं, वो जान लिया तो आपका फुल स्टॉप आ गया। और जहां तक मैं खुद कौन हूं वो नहीं जाना है, वहां तक कॉमा है, मेहनत करते ही रहने का। और मेहनत नहीं करनी है तो मैं खुद कौन हूं वो जान लेना। बहुत लंबा रास्ता है। स्मिता जी, ये पढ़ना, जॉब करना, संसार बहुत लंबा रास्ता है, मगर मैं खुद कौन हूं की पहचान करना वो सबसे आसान है। मुक्ति पाना सबसे आसान है, धर्म आसान है और अधर्म सबसे कठिन है। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया नहीं? हाँ, उल्टा बोल गया। सही में अधर्म कठिन है, धर्म आसान है। और मोक्ष पाना, मुक्ति पाना सबसे आसान, ये दुनिया में कुछ है तो मुक्ति पाना। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं। मानो कि ऐसे मान लो कि आप झूठ बोल रहे हैं। अभी झूठ बोलना अधर्म हुआ कि नहीं हुआ? अभी आप झूठ बोलते हैं तो आपने इनको कुछ झूठ बोल दिया, फिर 2 दिन के बाद वैशाली आपको मिलेगी, वही वो दोनों फ्रेंड है, वही बात निकलेगी, तो आपको ध्यान याद रखना पड़ेगा कि उनसे मैंने क्या बात की थी। दोनों फ्रेंड है और 2 महीने के बाद तीसरा कोई मिलेगा, वहां भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो कितना मगज में लोड लेना पड़ता है। और आप धर्म में है तो आप सत्य बोलते हैं, तो आप सत्य ही बोलते हैं, आपको लोड नहीं रहेगा। समझ में? और मुक्ति का मतलब आप खुद जो है वो होने का है। हम छोटे थे ना, स्कूल में पढ़ते थे तो एग्जाम्पल आता था कि एक सिंह का बच्चा वो अलग हो गया और वो जो बरवाट चरवाहा उनको लेके जाता है अपने साथ, भेड़ बकरियों के साथ। तो साथ में चल रहा है तो उनको लगता है कि मैं भी ये भेड़ बकरियां जैसा हूं। फिर कोई सिंह ने गर्जना की तो सामने इसने भी गर्जना की, तो सारी भेड़ बकरियां भाग गई। तो उनको रियलाइज हुआ कि मैं भेड़ बकरियां नहीं हूं, मैं तो सिंह हूं। तो उनको रियलाइज करने में कितना टाइम लगा? जरा भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो सिंह था। ऐसे आप खुद जो है वो रियलाइज करने में टाइम नहीं जाता है। तो भावना रखना कि ऐसी कुछ प्राप्ति करनी करना, ऐसी कुछ प्राप्ति, ऐसी भावना रखना। और आपको कितना टाइम देता तो आपको एक आज हम मिले हैं, स्मिता जी आज हम मिले हैं, फिर कब मिलेंगे कोई ठिकाना है? हमें कुछ पता ही नहीं चला कब मिलेंगे। तो आज मिले हैं, आपको इतनी बातें अच्छी लगी है तो आपको थोड़ा होमवर्क दे दूं। सॉरी, आप प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को होमवर्क नहीं दे सकते। प्रिंसिपल होमवर्क दूसरे को देते हैं। आप जो होमवर्क दोगे वो तो किताब से नहीं है, तो जिंदगी का होमवर्क है। वो तो
अच्छी बात सबसे बड़ी बात है ना, बहुत- वो तो होमवर्क किसी को भी आप दे सकते हो। तो मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूं ना, आपको जीवन में सुखी होना है ना, सुखी होना है ना? सुखी होने के लिए आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, तो इसके लिए आपको हर रोज 5 मिनट जैसा निकालना पड़ेगा, चलेगा? मॉर्निंग कभी भी नहीं, मॉर्निंग में 2 मिनट और शाम को 3 मिनट, चलेगा? आप भी कर लेना, आप भी गलती से आ गए तो सॉरी आ गए, चलो आ गए, दिल से आ गए, गलती से नहीं, मैं इंटेंशनली आई हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शायद मैंने पहली बार कोई सत्संग अटेंड किया होगा और मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कब से बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ कि मैं आपसे वो पूछूं। ओके उनका खत्म करता हूँ, 2-3 मिनट फिर आपका ले लूँ मैं, बहुत अच्छी बात। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इंटेंशनली आई, बहुत अच्छी बात। तो आपको एक सिंपल प्रेयर देता हूँ कि सुबह में जब उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग में जब भी उठते, 5 बजे 6 बजे 7 बजे, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी भगवान को मानते हैं उनके पास 5 बार इतनी शक्ति मांगना, मैं जब बुलाता हूँ, मैं बुलाता हूँ, आप रिपीट करना। प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। सिंपल है, सिंपल है, इसके मीनिंग बोलो। आप प्रिंसिपल है, मुझे पूछ रहे हैं। फिर भी आप आपके जवानी प्राप्त तो अभी मुझे जो मिला है वो ये प्राप्त मन वचन और काया से इस जगत के किसी भी जीव को, वो फिर मनुष्य है या प्राणी है, कोई भी किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, इतनी 5 बार आप जो भी भगवान को मानते हैं, या तो आपके भीतर रहे हो भगवान के पास शक्ति मांग लेना और निश्चय करना, तय करना है कि सारे दिन में मुझे किसी को दुख देना नहीं। इतना सिंपल कर सकते हैं। और ये करने के बावजूद भी रात को आप जब सो जाते हैं तो इन बिटवीन आपसे जाने अनजाने में किसी को दुख हो जाएगा, तो उनका क्या करोगे? माफी मांग लेंगे। माफी मांगने, बराबर है, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे माफी मांगने की वो भी बुला लेता हूँ, फिर वो प्रार्थना है वैसा ही मैंने आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे या किसी तरह से, करना भूलना मत, तारी जवाबदारी પછી બીજું આવને કે મને નથી આપ્યું એવું ના થાય, એ ના માગે તો તારે આપી દેવાની। तो रात की प्रार्थना बुलाता हूँ। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है, वैसे ही मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता की वजह से मैंने जो दोष किए हैं, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। इनके लिए हृदय से पश्चाताप करता हूँ। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और फिर से वैसे दोष कभी भी न करूं।
कभी भी न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति दे। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें आप ऐसी कृपा करें जिससे हम में से भेदभाव मिट जाए जिससे हम में से भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो जाए। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो जाए। हम आपके साथ हम आपके साथ अभेद रूप से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। बराबर है। ये प्रार्थना है कि रात को ये प्रार्थना बोलती है कि सो जाने का। फिर उसने जो बताया क्या ज्ञानता की वजह से मैंने जो जो दोष किए हैं, तो सारे दिन में जाने अनजाने 2 4 5 गलती हो गई, किसी को दुख हो गया, तो मन में माफी मांग के सो जाने का। इतना कर सकते हैं। अभी आप साइंस के ग्रेजुएट है ना, ये बात बहुत सिंपल है। आप लोग इट्स वेरी सिंपल बट इट्स कंप्लीटली साइंटिफिक। इफेक्टिव, सिंपल बट इफेक्टिव। हाँ, सिंपल, इफेक्टिव एंड साइंटिफिक। साइंटिफिक कैसे है कि जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पूरा दिन आपकी एक्शन क्या है कि मेरे मन वचन क्या से किसी को दुख न हो। तो ये रिएक्शन मदर नेचर आपको ऐसा संयोग देगी कि कोई आपको दुख नहीं देगा, और कोई आपको दुख नहीं देगा तो आपके पास क्या बचेगा? सुख बचेगा। तो सुखी होने के लिए दादा भगवान ने जो सिंपल रास्ता बताया था वो मैंने आपको बता दिया। आपको हर रोज करने का है और मैं खुद कहूँ वो पहचानना है। तो वैसा इवेंट को बोलना, कभी ऐसा प्रयोग होता है ना तो अभी आ जाना। अभी उनका ले लो जल्दी, तो टाइम होने के लिए आए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि मैं इंटेंशनली आई हूँ, बहुत बड़ी बात है। आज ये बात तो सही है। मैं इतनी તમે ગુજરાતીમાં બોલો ચાલશે? ચાલશે. ઓકે. હું એટલે આધ્યાત્મિક પર્સન નથી. હું આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ નથી. કર્મ બરાબર સારા કરું છું અને મને એના પર શ્રદ્ધા છે કે હું બરાબર કરું છું. મારે બહુ મંદિર કે એવું જવાનું બહુ એવું નથી કરતી. પણ મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે આપણે તમે વારંવાર ઉલ્લેખ કર્યો કે આવતા જન્મમાં કે ગયા જન્મમાં તમે આ કર્યું છે એટલે તમે આ કરો છો, આવતા જન્મમાં આ થવાનું છે, તમને ફાયદો આનાથી થશે, સારા કર્મ કરશો તો આવતો જન્મ. મારે એ આવતો જન્મ અને કયો જન્મ એ બેની સાબિતી જોઈએ છે. બરાબર. શું ભણેલા તમે? બીકોમ એલએલ. બીકોમ એલએલ. તો લોયર છો, વકીલ છો. એટલે સાબિતી માંગે ને, પ્રૂફ માંગે ને, પ્રૂફ. જો કેવું છે કે આમ કેટલાય એવા તબુ 40 વર્ષમાં વાત કરું તો આવા કેટલાય એક્ઝામ્પલ હોય છે. કોઈ નાના છોકરાનો જન્મ થાય, 5-7 વર્ષનો થાય અને પછી કે હું તો મારું ઘર તો ત્યાં દિલ્હીમાં હતું, એમ બરોડામાં છે તો મારું ઘર તો દિલ્હીમાં હતું. ત્યાં મા બાપ માને નહીં. પેલો બહુ આગ્રહ કે લઈ જાય તો છેક બાજુનું જે ઘર હોય ત્યાં લઈ જાય. પાછું બતાવે ખરું ઘરમાં બધી વસ્તુઓ હોય તો કે આ ઘરમાં જે સમજે ઘરમાં બધી વસ્તુઓ હોય ને, ઘરમાં બધી વસ્તુઓ હોય એ બતાવે. સમજાય? એટલે હવે નાનો છોકરો જેને ખબર નથી પણ છતાંય લઈ જાય છે ને અને બધું સાચું નીકળે છે ખરું. એટલે એવા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલો હોય છે. એટલે આ તો સ્થૂળ દાખલો આપ્યો, પણ તમને વૈજ્ઞાનિક રીતે સમજાવું કે કઈ પણ વસ્તુ બને તો પહેલા કોઝ હોય કે ઇફેક્ટ હોય? પહેલા કોઝ હોય પછી ઇફેક્ટ હોય. સમજે? તો કે કોઝ અને ઇફેક્ટ એન્ડ કોઝ આખી સાયકલ ચાલે કરે છે. ખ્યાલ? તો દાદા ભગવાન એક સરસ દાખલો આપ્યો હતો. દાદા ભગવાન જ્યારે નાના હતા, દાદા ભગવાનને 116 વર્ષ થઈ ગયા એમનો જન્મ થયો. એ નાના હતા 10-12 વર્ષના. તેમના ગામમાં, એમનું ગામ બાદળ, તે ગામમાં એક બેન એ પ્રેગ્નન્ટ હતા, 9મો મહિનો ચાલતો હતો અને ગામમાં જતા આપણું ગાય સિંગડું માર્યું.
એટલે પેટ ઉપર સીંગડું વાગ્યું એટલે પેટમાં સહેજ કાણું પડી ગયું, એટલે કાણામાંથી અંદર જે બચ્ચું એની આંગળી સહેજ બહાર આવી ગઈ અને પેલું બ્લીડિંગ થયા કરે. એટલે બધા પછી ત્યાં બાજુમાં જે મિશનરી બોરસદમાં મિશનરી હોસ્પિટલ હતી ને, મિશનરી હોસ્પિટલ, એના ડોક્ટર બધા આવ્યા તો કશું કરી શક્યા નહીં. એટલામાં એક માજી ત્યાંથી લાકડી લઈને જતા હતા. પૂછ્યું ભાઈ શું થયું, શું થયું? તો કે આવું થયું છે. તો કે ભાઈ બાજુમાં ખસી જાવ કે. એટલે પછી એમને શું કર્યું, એટલે એક બંને કીધું એક સોય લાવો અને એક ખડીયો લાવો. પેલા ખડીયો કયો, કેરોસીનનો ખડીયો, એટલે ખડીયો પ્રગટાવ્યો અને પછી સોયને એની વાટ પર ગરમ કરી અને જ્યોત ઉપર, અને પછી લૂછી ને પેલું નાનું છોકરાની જે આંગળી થોડી બહાર આવી ગઈ હતી ને એને ત્યાં ટચ કરી એટલે પેલા આંગળી અંદર ખેંચી લીધી અને પછી પેલું બધું રાગે પડી. આ પ્રસંગ બનેલો. પણ દાદાને એ ઉંમરમાં આખું એમાંથી દેખાયું કે આ મન વચન કાય ઇફેક્ટિવ છે. બરાબર? આ તમને હમણાં ઠંડી લાગે, ગરમી લાગે, ભૂખ લાગે, તરસ લાગે, બધી અસરો થાય ના થાય, મન વચન કાય ઇફેક્ટિવ છે. હવે આ ઇફેક્ટ માટે કોર્સ તો હોવા જોઈએ ને. હવે તમારા કોર્સ તો ખબર પડે, પણ આ બારે કોઈ જન્મ જ થયો નથી તો એ કોર્સ કરવા ક્યાં ગયેલો? તો કે આ પાછલા જન્મના કોઝ એની ઇફેક્ટ આવે છે, આ ઇફેક્ટ ભોગવતા નવા કોઝ ઊભા કરે, પછી એની ઇફેક્ટ આવે એટલે કોઝ અને ઇફેક્ટ, ઇફેક્ટ એન્ડ કોઝ, બાકી આ સાયકલ ચાલ્યા કરે છે. સમજાય? આ વૈજ્ઞાનિક રીતે. બાકી કેવું છે કે આપણે હિન્દુસ્તાની છે ને, આપણો સનાતન ધર્મ બીજા ધર્મો કરતા જુદો કઈ રીતે પડે કે આપણે સનાતન ધર્મમાં જ ખાલી પુનર્જન્મ અને કર્મનો સિદ્ધાંત બે વસ્તુને માનીએ. બાકી આ મુસ્લિમ હોય, ક્રિશ્ચિયન હોય, પારસી હોય, કોઈ માને નહીં. એટલે આપણે સમજાય નહીં કે કેવી રીતે છે, પણ ડીપ રૂટેડ અંદર ચોક્કસ માનીએ કે પુનર્જન્મ છે. અને એની સાબિતી શું કે તમારે કંઈક ખોટું કામ કરવાનું હોય ને તો તમને અંદર થાય કે હારું આ પછી મારે ભોગવવું પડશે, એમ કે બ્રેક વાગે. સમજાય? એટલે પુનર્જન્મ છે, 100% છે. આ કોઝ અને ઇફેક્ટનું ખૂબ વિજ્ઞાન છે. તો કેવું છે કે આપણે સમજાય નહીં એટલે આપણે થાય કે હવે પાછલો જન્મ હું ક્યાં હઈશ, કે હવે નવા જન્મ હું ક્યાં જન્મ લઈશ, મને શું દેખાય છે, જે છે આ જ છે એવું આપણે વિચાર આવે બુદ્ધિ. તો ખરેખર પુનર્જન્મ છે, આખું એનું વિજ્ઞાન છે અને એ સંસારની ચક્કરમાંથી છૂટવાનું છે. અને એ છૂટવા માટે કેવું ને હું કોણ છું એ જાણવું પડે. એટલે કે આઈ કેપિટલ આઈ કે આઈ વિધાઉટ માય થવું પડે. આઈ વિધાઉટ માય એને ભગવાન કહે અને આઈ વિથ માય એને જીવાત્મા કહે. આટલું સિમ્પલ છે. આપકો સમજે? कैपिटल आई इन्वर्टेड कॉमा विथ माय बिलोंगिंग्स पोजेशन, ये मेरा है. आई विथ माय इज जीवात्मा एंड आई विदाउट माय, विथ माय बट विदाउट माय मीन्स मेरा है वो नहीं है. आई विदाउट माय इज परमात्मा. इतना सिंपल है और ये भान करना है तो ऐसा इसको बोल के रखना. तो कभी एक ऐसा प्रयोग होगा तो आपको बुला लेंगे. तुमने समझे? आगे पूछो जी. मैं एक बात पूछना चाहती हूँ. हाँ बहुत टाइम चल रहा है. हाँ बोले आवाज नहीं आ रही. अरे आवाज हेलो. हाँ, मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ कि ये जो जन्म हमारा है, ये जन्म का पाप और पुण्य के इसी में मिलेगा कि फिर दूसरे जन्म ट्रांसफर होगा? आगे ये जन्म में नहीं आगे आएगा. तो हम लोग बोलते नहीं है इतना अच्छा काम करते हैं, देखो मेरे साथ ही बुरा होता है, सब लोग बोलते हैं, सब लोग. तो ऐसा क्यों? इसलिए कि ये जन्म में जो आपने नए कर्म बनाए ना, पाप या पुण्य, वो आगे आएगा. अभी तो पिछले जन्म का भुगत रहे. तो हमको समझ में नहीं आता है ना कि मैंने क्या किया, मैं क्यों भुगत रही हूँ. ये क्या है? हमें लगता है मैंने क्या किया. फिक्स डिपॉजिट में जो रखा है वो आपको मिलेगा. अगर गलत चीजें रखी है, गलत बात है तो फिर नेक्स्ट जन्म में वो होगा. આ શું છે, કેવું છે? આ જન્મમાં ચાલો ગુજરાતીમાં સમજાય તો ખરું તમને.
આ જન્મમાં તમે જે પણ કર્મ બાંધો પાપ કે પુણ્ય એનો ભોગવટો બીજા જન્મમાં આવે અને આ જન્મમાં પાછલા જન્મમાં જે પાપ પુણ્ય બાંધેલા એનો ભોગવટો આવે છે. એટલે તમે કેટલાય માણસો જુઓ કે આખી જિંદગી ઊંધા કામ કર્યા હોય ને તો એને દુઃખ ના આવ્યું હોય. કેમ? તો એ પાછલું પુણ્ય ભોગવે છે માટે. बहुत देखा. પાછલું હા બહુ દેખા ને આપણે. પછી તમને બીજી રીતે વાત કરું કે કેટલાક લોકો બહુ સીધા હોય, કેટલાક લોકો બહુ સીધા હોય, સરળ હોય, પણ છતાં એને કોઈને દુઃખે ના આપે ને બધું સારું જ કરતા હોય, છતાં એને જીવનમાં જાત જાતના દુઃખ આવ્યા જ કરે. એવું પણ બને. તો કે આ શું છે? તો કે એને પાછલા દુઃખનો, પાછલા પાપનો ઉદય છે એટલે આ દુઃખ આવે છે. હવે અત્યારે એ જો પોઝિટિવ રહે, અત્યારે જો પોઝિટિવ રહે તો શું થાય કે આગળ જતા એનું સુધરી જાય. કારણ એને પણ ખરેખર તો આપણે પાપ પુણ્યમાં પડવાની જરૂર નથી. આપણે તો પાપ અને પુણ્ય બંનેથી પર થવાની વાત समझવાની. लेकिन जब भुगतना पड़ता है तब हमारे ऑटोमेटिक आता है, हे भगवान हमने क्या किया, सब बोलता है ऐसा, हे भगवान मैंने क्या किया. जब भुगतना, सही बात है, सही बात है. जब भुगतना पर ऐसा ही होगा ना कि भाई मैंने क्या किया है, हम बोलेंगे मैंने ये जन्म में कुछ नहीं किया है, तो बराबर ये जन्म में कुछ भी नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है. और पिछले जन्म में करके उनका क्या, पिछले जन्म में जो कॉज डाला था उनकी इफेक्ट आ रही है. समझ में नहीं आता है ना क्या क्या करके आए हम लोग. देखने में नहीं आता कि मैंने कौन सा कॉज डाला था, मगर इफेक्ट के ऊपर से आपको पता चलता है कि ऐसे ऐसे कॉज डाले होंगे. वो मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल नहीं आता था, वो आंसर दे देते, आंसर के ऊपर से हमें उनका वो रिवर्स पे जाने का. हाँ तो वो कंसोलेशन है हमारे लिए. नहीं कंसोलेशन नहीं है, इट्स अ फैक्ट. इट्स अ फैक्ट, कंसोलेशन नहीं है. नहीं हमको मतलब दिल को ऐसे समझाना पड़ता है शायद हमने कुछ गलत काम किया. दिस इज द लास्ट लाइन. बराबर है. ये क्या है कि कुछ भी रिजल्ट आता है ना, पॉजिटिव का पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का नेगेटिव आता है. इस जन्म में तो नहीं आता है ना. नहीं इस जन्म में नहीं. तो इसीलिए तो मुश्किल, पता नहीं चलता है. बराबर है, मुश्किल है, मगर जब खुद को पहचान होगी ना तो कोई मुश्किल नहीं रहेगा. When you will realize your true self, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. तो इतनी प्रार्थना कर देना. अभी क्या है, अभी फर्स्ट टाइम मिले ही ना, ये जो मैंने बताया सुबह का और रात का जो प्रार्थना बताया वो करते रहना. इससे आपको सुख मिलता रहेगा. और साथ में ध्यान में रखना, ये वैसा उनको बोल के रखना, कभी ऐसा प्रयोग है, उनको ज्ञान विधि का प्रयोग बोलते हैं, जिसमें आई और माई के बीच में लाइन ऑफ डिमार्केशन डालते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं. तो सेल्फ रियलाइजेशन का एक प्रयोग है दादा भगवान का बहुत बड़ा. तो कभी ऐसा हो और आपको संजोगे तो ऐसा 2.5-3 घंटा आना पड़ेगा. अभी इतना जीवन पैसे के लिए संसार के इतना करते हैं तो खुद के लिए 3 घंटा निकल नहीं सकते. कर लेना, आप भी आ जाना, आपके बसों को अच्छे. चलो तो अभी पूरा करते क्योंकि जय सच्चिदानंद. अपने बस ये सत्संग की पूर्णाहुति यहाँ करते हैं. इन्होंने जो प्रार्थना बताई थी, मन वचन से दुख ना हो और दुख हो जाए तो शाम को शुद्धात्मा हमें भगवान की प्रार्थना. शुरुआत में हमने एक त्रिमंत्र बताया था, वो भी एक है. आप तो जरा लेट आए बट वैशाली बहन आपको दे देंगे. तो ऐसी, और ये एक कीर्तन भक्ति उसके पहले की थी, हमारे आत्मा की भक्ति. ये 4-5 छोटी प्रार्थना है जो मैं नए लोगों के लिए निवेदन करूँगा, आप भी कर सकते हैं. पीस ऑफ माइंड एंड वेलफेयर इन द डेली लाइफ. एंड द मेन थिंग इज कि मैं कौन हूँ इसका जानना, सनातन सुख प्राप्त करना. उसका ये प्रयोग की बात बड़ा मैंने लास्ट में बताई. वो केलनपुर में अनेक बार होती रहती है, तो इनके संपर्क में रहना. और आखिर में मैं सभी से निवेदन करूँगा कि दादा भगवान की समाधि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला रोड है, डबोई वाला रोड है, वहाँ पे हाईवे से 3 किलोमीटर करीब है. तो आपको जब भी समय मिले जरूर वहाँ पे पधारें. वहाँ पे दादा भगवान की समाधि है और 3 मंदिर के भी है. सीमंत स्वामी जैन का मंदिर, एक कृष्ण भगवान का मंदिर और एक शिवालय भी है. तो वहाँ पे आप जरूर आए, प्रसादी भी ले सकते हैं. तो दादा भगवान की समाधि और ये मंत्र का भी आप, क्षेत्र का भी आप लाभ ले सकते हैं. और
सनातन सुख प्राप्त करना है, ये भावना कीजिए। जस्ट टेंडर तो भरिए, मुझे सनातन सुख है, बाकी काम कुदरत करेगी। जय सच्चिदानंद। अब जय सच्चिदानंद। हाँ, શનિવારની જગ્યાએ પ્રાતવિધિ રવિવારે દાદા આલય પર છે, જેના નિમંત્રક તારાબેન પ્રિતેશભાઈ પંચાલ તરફથી છે, એટલે પ્રાતવિધિ રવિવારે છે ખાસ દાદા આલય ખાતે। અને 4 અને 5 કેલનપુર મુકામે આપણી ધજાનો પ્રોગ્રામ છે, તો ખાસ સવારે 10 વાગ્યાથી પ્રોગ્રામ શરૂ થશે। સવારે 10 થી 12:30 આપતપુત્રનો સ્વાધ્યાય સત્સંગ, જેના નિમંત્રક નલિનીબેન કંચનભાઈ મહેતા પરિવાર તરફથી છે। અને ત્યારબાદ બપોર પછી આપણે ધજાનો પ્રોગ્રામ શરૂ થશે। એના એ પણ કેલનપુર મુકામે 4 તારીખે રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી અને 5 તારીખે બપોરે 1 વાગ્યા સુધીનો પ્રોગ્રામ રહેશે। 5 તારીખે સવારે 8:30 વાગે પ્રોગ્રામની શરૂઆત થશે, એટલે મહાત્માઓ ખાસ ધ્યાન રાખજો। જેના નિમંત્રક અમદાવાદના મહાત્મા કેવુલબેન શુક્લ પરિવાર તરફથી છે અને બરોડાના મહેશભાઈ કાંતિભાઈ અમીન પરિવાર તરફથી છે, તો ખાસ ધ્યાન રાખજો મહાત્માઓ। જય સચ્ચિદાનંદ। આરતી। પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી છે। વર્તમાને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં વિચરતા तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूँ छू। जय सिमंदर स्वामी प्रभु तीर्थंकर वर्तमान महाविद्य क्षेत्रे विचरता महाविद्य क्षेत्रे विचरता भर करुणानुबंध जय सिमंदर स्वामी। दादा भगवान साक्षी पहुँचारू नमस्कार स्वामी पहुँचारू नमस्कार। प्रत्यक्ष फल पामू प्रत्यक्ष फल पामू माध्यम ज्ञान अवतार जय सिमंदर स्वामी। पहली आरती स्वामी ओम परमेष्टि पामे स्वामी ओम परमेष्टि पामे। उदासीन वृत्ति वहे उदासीन वृत्ति वहे कारण मोक्ष सेवे जय सिमंदर स्वामी। आरती स्वामी पंच परमेष्टि पामे स्वामी पंच परमेष्टि पामे। परमहंस पद पामी परमहंस पद पामी ज्ञान ज्ञान लड़े जय सिमंदर स्वामी। त्रिजी आरती स्वामी गणधर पद पामे स्वामी गणधर पद पामे। निराश्रित बंधन छूटे निराश्रित बंधन छूटे आश्रित ज्ञानी करे जय सिमंदर स्वामी। चौथी आरती स्वामी तीर्थंकर भावी स्वामी तीर्थंकर भावी। स्वामी सतदादातने स्वामी सतदादातने पर
करे जय सिमंदर स्वामी पंचमी आरती स्वामी केवल मोक्ष लहे स्वामी केवल मोक्ष लहे परम ज्योति भगवंत हूँ परम ज्योति भगवंत हूँ अयोगी सिद्ध पदे जय सिमंदर स्वामी एक समय स्वामी कोरे जे नमसे स्वामी माथुरारी नमसे अनन्य शरणु स्वीकारी अनन्य शरणु स्वीकारी मुक्ति पद नेवरे जय सिमंदर स्वामी एक समय स्वामी कोरे जे माथुरारी नमसे स्वामी माथुरारी नमसे अनन्य शरणु स्वीकारी अनन्य शरणु स्वीकारी मुक्ति पद नेवरे जय सिमंदर स्वामी जय सिमंदर स्वामी जय सिमंदर स्वामी अहो स्वामी सिमंदर हरिहंता जिनेश्वर वर्तमाने उपकारी अचर सचर देरासर अहो स्वामी सिमंदर हरिहंता जिनेश्वर वर्तमाने उपकारी अचर सचर देरासर भरत क्षेत्रे हाल विचरता सर्वज्ञ श्री दादा भगवान ने निश्चय थी अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छू जय दादा भगवान दादा संगमेश्वर भगवान आरती करी जीव टाळे आरती करी जीव टाळे रौद्र आत पद्यान जय दादा भगवान प्रगट दिवो दादा केरो जग प्रकाश मान करे दादा जग प्रकाश मान करे जग कल्याणे प्रगट्या जग कल्याणे प्रगट्या अर्थम ज्ञान अवतार जय दादा भगवान पहली आरती दादानी त्रिविधता पठारे दादा त्रिविधता पठारे सर्व अवस्था समाधि सर्व अवस्था समाधि शुद्धात्मा ज्योत जले जय दादा भगवान कीजी आरती दादानी केवल दर्शन करे दादा केवल दर्शन करे ओ सायना ओ साय जगे ओ सायना ओ साय
जगे क्रियाમાં કરતા જય દાદા ભગવાન. ત્રીજી આરતી દાદાની કેવળ જ્ઞાન પામે દાદા કેવળ જ્ઞાન પામે. સ્વસંવેદન શક્તિ સ્વસંવેદન શક્તિ બ્રહ્માંડ પ્રકાશ સ્વયં જય દાદા ભગવાન. ચોથી આરતી દાદાની અદીઠ તપ કરે દાદા અદીઠ તપ કરે. જ્ઞાન અજ્ઞાન ભિન્ન ભેદી જ્ઞાન અજ્ઞાન ભિન્ન ભેદી સ્વચારિત્ર લહે જય દાદા ભગવાન. પંચમી આરતી દાદાની કલ્યાણ ભાવ વાવે દાદા કલ્યાણ ભાવ વાવે. તીર્થંકર પદ પામી તીર્થંકર પદ પામી જગ કલ્યાણ કરે જય દાદા ભગવાન. દાદા આરતી કેવળ જે કોઈ ગાશે દાદા જે કોઈ ગાશે. એક કૃપા અમી દ્રષ્ટિ એક કૃપા અમી દ્રષ્ટિ તારણ તારણ તારે જય દાદા ભગવાન. દાદા આરતી કેવળ જે કોઈ ગાશે દાદા જે કોઈ ગાશે. એક કૃપા અમી દ્રષ્ટિ એક કૃપા અમી દ્રષ્ટિ તારણ તારણ તારે જય દાદા ભગવાન જય દાદા ભગવાન જય દાદા ભગવાન. દાદા સંગમેશ્વર ભગવાન. જ્ઞાનાંજન હે પરમાનંદમ દાદા જય સચિત આનંદ નિરંજન સિદ્ધ હરિહંતાણમ. હે દાદા તે મૂર્તિ ચરમ સ્પંદ મુખ મુદ્રા મનહર જન વલ્લભ મુરલી મનોહર જ્ઞાન સુધામૃત પાયાંતર નિરક્રાંતિ સમરસ દશા અહો વિતરાગ અનુપમ આત્માનંદી પુષ્ટિ વચન બળ નિષ્કામી કરુણામય પલ પલ પ્રગટ દીવો જ્યોતિ જળહર જગ આસ્થાનું તારો દળ દળ પ્રગટ દીવો જ્યોતિ જળહર કાળ ફળ છંદ અનંત ગુણ જય સચ્ચિદાનંદ
करुणा सागर हे परमात्म संबंधी शाश्वत शरणं मोक्ष संबंधी शाश्वत शरणं शरीर छताए अशरीर पावे शरीर छताए अशरीर भावे विचरे सर्वज्ञ तेने वंदन करूं छुं विचरे सर्वज्ञ तेने वंदन करूं छुं दादा भगवानने नमस्कार करूं छुं दादा भगवानने नमस्कार करूं छुं सर्वदेव लोकनो राजीवो ज्ञानी पर तेज महात्माओ पड़ी सके निडर कोई पण महात्मा ने उपसर्ग आवे त्यारे कोई पण महात्मा ने परिसर आवे त्यारे दादाजी करे छे देव हाथू मोकले चलाकर आको मोक्षदान साधे अभयदान खासु हृदय कमर माता राज साहु अमृत मूर्त मोक्षनी ज्ञान भक्ति प्राप्तु अमृत मूर्त मोक्षनी तंदुरस्ती प्राप्तु आसिद्ध मंदिरनी तंदुरस्ती प्रार्थु आसिद्ध मंदिरनी तंदुरस्ती प्रार्थु दादा दादा बोल गान थाकु 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 दादा 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 बोल गान थाकु दादा दादा बोल गान थाकु जय सच्चिदानंद।